Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Mhm. Okay. My name is Mishal Amjad, President of the Association for Development and Law. On the behalf of the association, I warmly welcome you all to today's session. Before we begin, I would like to briefly introduce Association for Development and Law. ADL, Adil, has always taken meaningful initiatives for the law student, focusing on their legal growth and professional development. Through its different divisions, including the Mood Competition Society and the Legal Awareness Division, Adel strives to organize activities and workshops that help shape future advocates. Today marks the first day of our 3-day workshop, and we are excited to begin this learning journey with all of you. The topic of today's session is mastering mock trials from courtroom fundamentals to cross examination strategy. It is my great pleasure to introduce our esteemed speaker, Mr. Muhammad Shahir, an accomplished advocate and US paralegal specializing in corporate ADR and technology law. With extensive experience in contracts, compliance, and legal research, he brings a highly practical and insightful approach to legal practice. We are truly honored to have you with us today. Sir, welcome to the session. Before we proceed, a few important instructions for all participants. Kindly keep your microphones muted and cameras off throughout the session. A Q&A session will be held at the end. If you wish to ask a question, please use the raise hand feature first. You may only speak when the speaker allows you to do so. Your attendance sheet will be shared in the chat box during the session, and it is mandatory for all 3 days. You will be informed when the attendance form is dropped. So please make sure to fill it. Without any further delay, let's begin. Over to you, sir. Thank you so much and जज़ाकल्लाह खैर to Adil for the kind invitation. मेरे लिए बहुत ही इज्जत की बात है, मेरे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि आप लोगों ने मुझे इस हवाले से मदऊ किया एंड आई रियली होप सो कि इस सेशन के एंड पे इंशाल्लाह all the participants would be having a good idea of how to proceed in regards to mock trials. I really thank Adil, I really thank Shazil and Ishal for the kind invitation. And you guys are doing a wonderful job. I did get an opportunity to see your activities, so it's wonderful to see. तो everyone मैंने एक तैयार की है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जस्ट फॉर द सेक कि हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड अंदाज के अंदर चीज़ों को लेके चल सकें. सो इफ यू जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी ओपन दैट अप. ऑलराइट, एक तो मुझे कंफर्म कर दें कि आप सबको भी क्लियरली नज़र आ रही है कि नहीं आ रही. वंडरफुल, बिल्कुल ठीक है. गॉड, थैंक यू सो मच गाइस. ओके, अच्छा तो शुरुआत करने से पहले मेरा ख्याल है यहाँ पे अक्सर जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे वुड हैव अ गुड आइडिया रिगार्डिंग व्हाट आर मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस. आप में से बहुत सारे लोगों ने मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट भी किया हुआ होगा. पार्टिसिपेट नहीं किया तो यू वुड हैव डेफिनेटली ऑब्जर्व दैम. मॉक ट्रायल जो है मूड कोर्ट से थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है. अगर आप मॉक ट्रायल्स को देखेंगे, जब आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो मूड कोर्ट्स में आपने गौर किया होगा कि मूड कोर्ट्स के अंदर जो प्रोसीडिंग होती है इट इज अ प्रोसीडिंग ऑफ द एपेलेट कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर फॉर दैट मैटर. हमारे पास अब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है. उसमें जो प्रोसीडिंग्स होती हैं दे आर सिमुलेटेड इन ए मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन. क्योंकि मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स के अंदर
जो लॉ का डिस्प्यूट है उसको डिस्कस किया जाता है। तो जब भी आप देखेंगे तो उसमें फैक्ट्स के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं होता, बिकॉज आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है विच इज अ स्टेटमेंट ऑफ अग्रीड फैक्ट्स, जो आपको फैक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं होता। तो वहां पर जो डिस्प्यूट होता है दैट इज रिगार्डिंग द लॉ विच इज डिस्कस्ड। मॉक ट्रायल मुख्तलिफ किस तरह है? मॉक ट्रायल के अंदर इट इज अ प्रोसीडिंग ऑफ द लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स के अंदर, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर जो ट्रायल का प्रोसेस होता है दैट इज सिमुलेटेड इन ए मॉक ट्रायल। अब उसके अंदर जो डिस्प्यूट होता है दैट इज नॉट प्राइमरीली रिगार्डिंग द लॉ। उसके अंदर जो डिस्प्यूट डिस्कस होता है दैट इज रिगार्डिंग द फैक्ट कि आया ये वाकया इस टाइम पे हुआ कि नहीं हुआ, क्या ये शख्स जो इसको बयान कर रहा है इज ही रिलायबल और नॉट। तो उन चीजों को गो थ्रू किया जाता है। इसी के अंदर फिर आ जाते हैं आपकी एविडेंस आ जाती है, इसमें आपकी विटनेसेस की क्रॉस एग्जामिनेशन, डायरेक्ट एग्जामिनेशन आ जाती है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इस्टेब्लिशिंग ए फैक्ट। तो लीगल डिस्कशन भी होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लीगल डिस्कशन से वो खाली है, लेकिन जो मेन प्राइमरीली चीजें हैं उसके अंदर मॉक ट्रायल के अंदर दैट इज द ट्रायल प्रोसेस, और उसमें फैक्चुअल जो डिस्प्यूट होता है उसको डिस्कस किया जाता है, उसको लेके चला जाता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मॉक ट्रायल के अंदर जो कॉम्पोजिशन होती है टीम्स की क्या होती है। मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन के अंदर आपने देखा होगा कि देयर इज 1 or 2 स्पीकर्स एंड देयर इज 1 रिसर्चर, ठीक है। मॉक ट्रायल थोड़ा सा मुख्तलिफ है क्योंकि तो उसमें अकॉर्डिंगली टीम्स की कॉम्पोजिशन भी मुख्तलिफ होती है। तो आमतौर पे होता है कि एक टीम के अंदर 4 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 2 जो हैं वो होते हैं अटॉर्नीज और 2 होते हैं विटनेसेस। अब जो साइड्स होती हैं दे आर 2 एज वेल। जिस तरह उधर होते हैं पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट या प्लेंटिफ एंड रिस्पोंडेंट, तो मॉक ट्रायल्स में हो जाते हैं प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। तो प्रोसिक्यूशन जो है वो आमतौर पर स्टेट की तरफ से या जो दावा लेकर आए उनकी तरफ से केस को लड़ते हैं, और डिफेंस जो है जो भी इल्जामात होते हैं उनको डिफेंड करते हैं अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये उसमें 2 डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस हैं कि जो टीम की कॉम्पोजिशन है वो भी जरा डिफरेंट है। तो इसी तरह प्रोसिक्यूशन की टीम में भी 2 अटॉर्नीज 2 विटनेसेस, और डिफेंस की टीम में 2 अटॉर्नीज एंड 2 डिफेंसेस 2 witnesses. Okay, I believe if there is a good question, so you can either note it down, और अगर कोई during the session अगर कोई आपको लगता है कि there is something which is very confusing, तो just raise the hand या अपना माइक आप ओपन करके बोल सकते हैं। तो nothing to worry in this regard, ठीक है। तो ये मेरा ख्याल है जो composition of teams है ये इससे क्लियर हो जाएगी कि attorneys and witnesses, तो ये 2 चीजें होती हैं आपकी टीम के अंदर। अच्छा, अब जो अटर्नीज होते हैं उनका रोल क्या होता है? अटर्नीज का प्राइमरीली रोल ये होता है कि अगर हम स्ट्रक्चर के ऊपर जाते हैं, हमने स्ट्रक्चर को भी इसमें आगे डिस्कस किया हुआ है। तो जो मॉक ट्रायल होता है इसका सेशन किस तरह शुरू होता है? तकरीबन 1 घंटे का सेशन होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। और इसमें स्टार्ट ऑफ होता है विद द ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ द अटर्नी ऑफ बोथ अटर्नीज, जो प्रोसिक्यूशन के अटर्नीज हैं एंड डिफेंस के अटर्नीज हैं। पहले वो दोनों आके अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके विटनेसेस को बुलाया जाता है। सबसे पहले प्रोसिक्यूशन अपने पहले विटनेस को बुलाती है और उसकी करती है एग्जामिनेशन इन चीफ। उसके बाद फिर डिफेंस साइड से अटर्नी आते हैं और वो प्रोसिक्यूशन के विटनेस के करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। अभी ये सारी कॉन्सेप्ट्स क्या है इनको हम थोड़ी देर में फर्दर खोल के बयान करेंगे, लेकिन जस्ट टू गिव यू अ कॉन्सेप्ट कि पहले प्रोसिक्यूशन का विटनेस आया, प्रोसिक्यूशन के विटनेस के ऊपर प्रोसिक्यूशन के पहले अटर्नी ने की एग्जामिनेशन इन चीफ, या जिसको डायरेक्ट एग्जामिनेशन भी कहते हैं, और फिर उसी विटनेस पे जो अपोजिंग अटर्नी है जो कि डिफेंस के अटर्नी है उन्होंने आके की क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके बाद फिर मौका दिया जाता है प्रोसिक्यूशन के अटर्नी को कि आया वो री एग्जामिनेशन करना चाहते हैं तो दे कैन कम अगेन। इसके बाद फिर जो दूसरा विटनेस होता है फॉर द प्रोसिक्यूशन साइड उसको बुलाया जाता है, और वो जो है अपनी जो प्रोसिक्यूशन का अटर्नी होता है वो दूसरे विटनेस की एग्जामिनेशन इन चीफ लेता है, डायरेक्ट एग्जामिनेशन करता है, और इसी तरह से जो डिफेंस का दूसरा अटर्नी है वो उस विटनेस की आके क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। सेम प्रोसेस देन कन्वर्ट्स इनटू द डिफेंसिव साइड, कि फिर डिफेंस साइड का पहला विटनेस आता है,
डिफेंस के अटर्नी उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ करता है, और जो दूसरा अटर्नी है, द अपोजिंग अटर्नी, जो कि प्रोसिक्यूशन का है, वो उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। उसके बाद फिर क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद डिफेंस के अटर्नी को फिर से मौका दिया जाता है कि वो री एग्जामिनेशन करे उसकी, अगर वो करना चाहे। इट इज ऑप्शनल, नॉट कंपल्सरी। उसके बाद फिर डिफेंस का अटर्नी अपने दूसरे विटनेस को बुलाता है, उसकी पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होती है बाय द डिफेंस अटर्नी, फिर उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन होती है बाय द prosecution attorney, and then re-examination, and then it goes towards the closing statements. Closing statements के अंदर सारी की सारी सूरत हाल को मुख्तसर करके बयान किया जाता है और चीज़ों को कंक्लूड किया जाता है। तो ये इससे आपके पास एक जो आप कह लें कि खाका है पूरे राउंड का, वो आ जाएगा कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं। अब अटर्नीज का जो रोल है इसमें, अच्छा, विटनेसेस का भी और अटर्नीज का जो रोल है इसमें आप लोगों को समझने की जरूरत होगी कि बड़ा एक्टिव होता है और ड्यूअल होता है। ड्यूअल किस तरह होता है? मॉक मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स के अंदर थिंग्स आर अ बिट सिंपलर कि एक साइड आई, उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया, वापस जाके बैठ गए। दूसरी साइड आई, उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया, वो वापस जाके बैठ गए। तो ये इस तरह की सेटिंग चलती है। मॉक ट्रायल थोड़ा सा जरा ज्यादा एक्टिव है, थोड़ा सा जरा ज्यादा ट्रिकी है। वो किस तरह से कि अब फॉर एग्जांपल ओपनिंग स्टेटमेंट्स हो गई हैं, और सबसे पहले हमने बताया जी कि प्रोसिक्यूशन अपने पहले विटनेस को कॉल करेंगे। प्रोसिक्यूशन ने जब अपने पहले विटनेस को कॉल किया है, तो विटनेस को बुलाकर वहां पे क्वेश्चंस करेंगे और एग्जामिनेशन जो इन चीफ है वो होगी। अब एग्जामिनेशन इन चीफ क्या होता है? एग्जामिनेशन इन चीफ का मकसद ये होता है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो अपने केस को बिल्ड करने के लिए, अपने विटनेस को स्ट्रॉन्ग शो करने के लिए, उसको वेल प्रिपेयर्ड शो करने के लिए, उसको गुड बुक्स में लाने के लिए जज की या जूरी की, तो उससे ओपन एंडेड सवाल करते हैं जिससे विटनेस जो है वो अपना केस बयान करता है। ठीक है, अब ये हो गया एग्जामिनेशन इन चीफ। उसके बाद दूसरी साइड का जो अटर्नी है, जो कि डिफेंस का अटर्नी इन दिस केस, वो आके करता है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन क्या होता है? क्रॉस एग्जामिनेशन का मकसद ये होता है कि विटनेस ने अपनी डायरेक्ट एग्जामिनेशन के अंदर या एग्जामिनेशन चीफ के अंदर जो भी पॉइंट एस्टैब्लिश किया है या जो भी स्टांस लिया है, उसको डिसमेंटल किया जाए। और डिसमेंटल किस तरह किया जाता है? इन बोथ केसेस क्वेश्चंस के जरिए से। अब क्वेश्चंस दोनों साइड पे मुख्तलिफ होते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि किस साइड इनमें क्वेश्चंस कौन से अलाउड होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, किस तरह से होता है। लेकिन आप इस चीज को देखेंगे कि जो रोल है विटनेस का वो ड्यूल हो गया। ड्यूल किस तरह हो गया कि पहले उसने एग्जामिनेशन इन चीफ के अंदर प्रोसिक्यूशन के जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना है, और जो भी आपको केस फाइल दी जाती है, थोड़ा सा हम साथ में इसको जो प्री प्रिपरेशन है उसको भी देख लेते हैं कि जो मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन होता है उसमें आपको दी जाती है एक मूट प्रॉब्लम दिया जाता है। मूट प्रॉब्लम के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अग्रीड फैक्ट्स है और एंड पे 3-4 क्वेश्चन जिनको आपने आर्ग्यू करना है। आपका जो मूट प्रॉब्लम है, आमतौर पे अगर आप नेशनल कॉम्पिटिशन्स को देखें तो शायद बहुत ही खींचतान के, अगर मूट प्रॉब्लम बड़ा है तो शायद 10 पेजेस का होगा, 15 पेजेस का होगा। जो लेकिन मॉक ट्रायल कॉम्पिटिशन है उसमें इस तरह नहीं होता। उसमें आपको एक केस पैकेट दिया जाता है। केस पैकेट के अंदर एक तो सारी जो डिस्प्यूट होता है या जो सारी कहानी होती है उसका बैकग्राउंड होता है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर एनेक्शर्स होते हैं। एनेक्शर्स से मुराद होती है कि डॉक्यूमेंट्स के एंड के ऊपर जो एडिशनल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं या उसका जो पार्ट होते हैं वो मेंशन होते हैं। तो एनेक्शर्स के अंदर हर कैरेक्टर की who is going to be a part of the mock trial proceedings, उसके डिपोजिशंस होते हैं। व्हाट आर डिपोजिशंस? डिपोजिशन से मुराद ये होता है कि हर कैरेक्टर ने एक स्टांस लिया हुआ है, उसकी एक कहानी है, कोई भी मसला पेश आया है, कोई क्राइम कमिट हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, तो हर कैरेक्टर का उसके ऊपर अपना अपना एक पर्सपेक्टिव है, उसका एक अपना उसके ऊपर थॉट है, उसका एक अपना उसके ऊपर स्टांस है। तो उस स्टांस का जिक्र उस डिपोजिशन के अंदर हुआ होता है कि कौन सा कैरेक्टर क्या स्टांस लेता है और कौन सा कैरेक्टर किस चीज को नेगेट करता है, कौन सा कैरेक्टर किस चीज को सपोर्ट करता है। तो जब आपके पास सबसे पहले जो पैकेट है, केस पैकेट है, वो आ जाता है, तो टीम से गुजारिश ये होगी
कि आपने एक तो बहुत ही गौर के साथ, बहुत ही तसल्ली के साथ आपने पूरी की पूरी केस फाइल को, केस पैकेट को पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें इवन दो रूल्स 4 हैं और 4 मुख्तलिफ रूल्स हैं, लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि सबको जो पूरा केस है उसकी कहानी आती हो, उनको केस समझ आता हो। तो ऐसा नहीं है कि जी प्रोसिक्यूशन के अटॉर्नी ने सिर्फ अपने पॉइंट्स को पढ़ लिया और बाकी चीज़ों को छोड़ दिया, या विटनेस एक है, उसने अपने सारे पॉइंट्स को पढ़ लिया, अपनी डिपोजिशन को पढ़ लिया, बाकी उसने कुछ नहीं देखा। इससे क्या होगा कि जब प्रोसीडिंग्स के अंदर आएंगे और क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, तो फिर वहां पे डिस्प्यूट राइज करते हैं, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और जब कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा आपकी स्टेटमेंट्स में, तो उससे आपका सारा का सारा केस हो जाएगा खराब। तो आपने इस चीज को इंश्योर करना है कि जो आपको केस फाइल दी गई है उसको एंड टू एंड पढ़ें, उसको बहुत गौर से पढ़ें, और बिल्कुल आपकी फैक्ट्स के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। ये मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन के अंदर तो इस चीज को एम्फोसाइज किया जाता है, लेकिन मॉक ट्रायल कॉम्पिटिशन में इसका एम्फेसिस मजीद इसलिए है क्योंकि मैंने जिस तरह शुरू में जिक्र किया कि मॉक ट्रायल कंपटीशन में होता ही फैक्ट्स का है। तो अगर फैक्ट्स के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं होगी, या आपको पता नहीं है कि मैंने किस चीज को एक्सेप्ट करना है, किस चीज को डिनाई करना है, या मैं किस टाइम पे किधर था, तो वहां पर आप फिर आउट ऑफ द बॉक्स चले जाएंगे और अपने रोल से आउट चले जाएंगे, और फिर आप वो स्टेटमेंट देंगे जो कि आपके केस को हर्ट करती हो। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए जो टीम्स हैं उन्होंने इस चीज को इंश्योर करना है कि आपने केस पैकेट को, केस फाइल को बहुत ही थॉरोली पढ़ा, बहुत ही गौर के साथ पढ़ा। और फर्क जरा इसमें यह भी होता है कि इसकी जो केस पैकेट होता है जरा बड़ा होता है, क्योंकि डिपोजिशन आ गए, बहुत सारी स्टेटमेंट्स आ गई, एविडेंशियरी डाटा आ गया, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं एविडेंस के तौर पे, उसके अंदर कोई रिपोर्ट्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो वो सारी चीजें मिला जुला के तकरीबन मेरा ख्याल है 50-70 पेजेस का एक पूरा केस पैकेट बनता है। तो ये है कि उस चीज को आपने गौर से पढ़ना है, इसलिए मूड कोर्ट के अंदर शायद आप इस चीज को पुट ऑफ कर सकते हो कि आप लास्ट मोमेंट तक जो है वो चीजों को डिले करते हैं, लेकिन मॉक ट्रायल के अंदर यू डू नॉट हैव टाइम टू लूज। तो आपने हर दिन उस चीज को इंश्योर करना है कि अपने टारगेट सेट करें और अकॉर्डिंगली उस केस फाइल को आप कह सकते हैं कि डिबावर करने के लिए, उसके ऊपर एक महारत हासिल करने के लिए, इस चीज को आपने इंश्योर करना है कि आपने उसको पूरी तरह से पढ़ना है, बहुत गौर से पढ़ना है। हमने देखा है कि जब हम एडवोकेट करने जाते हैं कि टीम्स जो है वो बगैर तैयारी के आती हैं, तो उसका नुकसान ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल एक साइड जरा अच्छी तैयार हुई हुई है और उनके अटर्नीज ने अच्छे क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं, और दूसरी तरफ से जो विटनेसेस हैं उन्होंने अच्छी तैयारी नहीं की हुई, तो उनको नहीं पता कि हमारा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के हवाले से या पर्टिकुलर सिचुएशन के हवाले से हमारा क्या स्टांस है। तो इधर से सवाल करते हैं तो दे सिंपली कीप डिनाई कि हमें नहीं पता इस हवाले से, वी डोंट नो रिगार्डिंग दिस, वी डोंट नो। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर तो सवाल केस फाइल के अंदर से हो रहा है तो हर चीज का जवाब बस ना हो। तो इसका फिर मतलब ये होता है कि आपने जो है वो केस फाइल को गौर से नहीं पढ़ा हुआ है। तो इस चीज को इसलिए आपने बहुत इंश्योर करना है, आई एम एम्फसाइजिंग टाइम एंड टाइम अगेन, because that will either make your team or break your team. That will either ensure you succeed in the competition, or that will ensure कि आप पहले राउंड से भी आगे ना बढ़ सके। ठीक है, तो इस हवाले से आपने इंश्योर करना है। केस फाइल को आपने जब कर लिया अंडरस्टैंड, आपने जो मुख्तलिफ उसके अंदर रूल्स हैं उनको आपने कर लिया सेपरेट, तो उसके बाद फिर आप जो मॉक ट्रायल की प्रोसीडिंग्स हैं इटसेल्फ, उसकी तैयारी के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि एक टीम के अंदर 2 अटर्नीज होते हैं, 2 विटनेसेस होते हैं, तो इसमें भी इंश्योर करना होता है कि आपने इंसाफ के साथ चीज़ों को लेके चले, सो दैट एवरीवन गेट्स एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन यह है कि जो लोग विटनेसेस हैं वो विटनेसेस ही रहें, जो लोग अटर्नीज हैं वो अटर्नीज ही रहें, ताकि जब इतने सारे फैक्ट्स होंगे, इतना सारा डाटा होगा, तो उसमें स्विच ओवर करना ज़रा मुश्किल काम होता है। तो अगर आप अपनी ही सिचुएशन को, अपने स्टांस को क्लियरली समझ लें और उसको आप लेके चल सकें, तो दैट इज बेटर, क्योंकि आप हर रोल को जो है वो शायद पूरी तरह से अबूर ना कर सकें। हाँ, आपको सारी की सारी सिचुएशन का, सारे केस का ओवरव्यू पता होना चाहिए, सारा केस पता होना चाहिए, लेकिन जो अपना पर्टिकुलर रोल है उस पर आपकी ग्रिप होगी। तो इसलिए इट इज़ नॉट रिकमेंडेड कि आप अपने जो रोल्स हैं उनको कह सकते हैं कि स्विच करें।
अलबत्ता जो अटर्नीज हैं वो ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर एक अटर्नी ने प्रोसिक्यूशन के या डिफेंस के फॉर दैट मैटर एक अटर्नी ने अगर ओपनिंग स्टेटमेंट दी है तो दूसरा अटर्नी जो है वो क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दे, ठीक है। अगर एक अटर्नी ने डिफेंस के पहले विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया है तो दूसरा अटर्नी जो है प्रोसिक्यूशन का वो डिफेंस के दूसरे विटनेस को कर लेगा क्रॉस एग्जामिन। तो इस तरह से आपने वो बैलेंस इंश्योर करना है ताकि किसी एक के ऊपर प्रेशर भी ज्यादा ना आए, लेकिन ये भी इंश्योर रहे कि साथ साथ आपकी आपका जो रोल है उस पर आपकी महारत हो एंड यू एग्जैक्टली नो कि किस रोल में क्या बात करनी है और क्या चीज पूछनी है और क्या चीज नहीं पूछनी या क्या जवाब देना है और क्या जवाब नहीं देना है, ठीक है जी। तो विटनेसेस के हवाले से आगे हम अटेंडेंस के हवाले से हमने समझ लिया। अच्छा, ओपनिंग स्टेटमेंट। ओपनिंग स्टेटमेंट इज बेसिकली आप कह सकते हैं कि it is an introduction of what you are going to be doing in the whole 1 hour राउंड जो भी टाइम है। मॉक ट्रायल का जो राउंड होता है वो 1 घंटे का होता है, तो उसमें 10 मिनट होते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट्स के लिए। तो 5 मिनट जो है वो एक अटर्नी को दिए जाते हैं प्रोसिक्यूशन के कि आप अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट करें, और फिर 5 मिनट दिए जाते हैं डिफेंस के अटर्नी को कि वो अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट करें। अब ओपनिंग स्टेटमेंट के अंदर दोनों ही अटर्नीज आके क्या करते हैं, वो अपना जो एक केस है उसका एक समरी जो है ना प्रेजेंट करते हैं कि व्हाट वी विल बी डूइंग इन दिस नेक्स्ट 1 आवर, कि हम जो अगले 50 मिनट या 40 मिनट जितना भी टाइम है उसमें क्या कर रहे होंगे, हम क्या स्टांस ले रहे होंगे, हम किस चीज को स्टैब्लिश कर रहे होंगे, किस चीज को नेगेट कर रहे होंगे। अब प्रोसिक्यूशन साइड है, तो प्रोसिक्यूशन साइड क्योंकि ये किसी अगर जुर्म हुआ है तो उसके खिलाफ आए, सो दे आर द प्लेंटिफ इन दिस रिगार्ड। तो प्रोसिक्यूशन अपना केस ये बिल्ड करेगी जी कि हम आने वाले इस 1 घंटे के अंदर थ्रू आर विटनेसेस, थ्रू द एविडेंस वी प्रेजेंट, हम इस चीज को स्टैब्लिश करेंगे जी कि ये जुर्म हुआ है और ये इसी शख्स ने किया है और ये इसकी जो बाकी तकल्लुफात हैं और ये उसका सपोर्टिंग डेटा है। और डिफेंस अटर्नी क्या करेगा, डिफेंस अटर्नी बताएगा जी कि देखिए जी बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इट इज अपॉन द प्रोसिक्यूशन एंड एविडेंसेस के हवाले से हम जो है ना प्रूफ करेंगे, हम अपने विटनेसेस के जरिए से प्रूफ करेंगे कि जिस शख्स के ऊपर ये फर्दर जुर्म आयद करना चाह रहे हैं या जिस शख्स को ये पीनलाइज करवाना चाह रहे हैं या जिस शख्स को ये क्रिमिनल डिक्लेयर करवाना चाह रहे हैं, तो ही वॉज नॉट एट दैट प्लेस, या वो उस सिचुएशन में था ही नहीं, he was not a part of that whole situation, so he is not liable to be punished। तो वो दोनों ओपनिंग स्टेटमेंट्स के अंदर एक ब्रीफ बताते हैं कि व्हाट वी विल बी डूइंग और हमारा क्या स्टांस है इस हवाले से, ताकि जूरी को समझ आ जाए कि अच्छा जी प्रोसिक्यूशन का ये जो है ना पर्सपेक्टिव है और डिफेंस का ये पर्सपेक्टिव है, और 1 घंटे के अंदर जो है जो भी आपको टाइम मिलेगा उसके अंदर ये इस चीज को प्रूफ करे होंगे। तो जजेस आमतौर पर करते क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर प्रोसिक्यूशन साइड के अटर्नी ने कहा है अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट में जी कि हम एविडेंस प्रेजेंट करके इस पर्टिकुलर पॉइंट को साबित करेंगे, तो जजेस नोट कर लेते हैं जी कि अच्छा दिस इज समथिंग व्हिच यू हैड टू प्रूव। इसी तरह डिफेंस अगर कहती है जी कि हम इस एक पॉइंट को नेगेट करेंगे, तो जजेस नोट कर लेते हैं कि ओके दिस इज समथिंग व्हिच दे वुड शुड हैव नेगेटेड, इस चीज का इनकार कर दिया होना चाहिए थ्रू एविडेंस, थ्रू विटनेसेस कि ये चीज नहीं हुई है। तो अगर उस 1 घंटे की प्रोसीडिंग के बाद प्रोसिक्यूशन इस चीज में कामयाब हो जाती है कि वो उस पॉइंट को प्रूफ कर देती है या उस पॉइंट को स्टैब्लिश कर देती है, दैट्स गुड, इसका मतलब है कि यू हैव अकॉम्प्लिश्ड। अगर डिफेंस उस एक पॉइंट को डिनाई कर देती है, उस चीज को डिसमेंटल कर देती है, तो इट मीन्स गुड कि जो डिफेंस है उसने अपना केस ठीक लड़ा है। लेकिन अगर आप उन चीजों को प्रूव ना कर सके और आप 1 घंटे में जो आपने सवालात किए हैं दे आर इररेलेवेंट, दे आर नॉट अप टू द मार्क, तो इसका मतलब ये होगा कि यू हैव नॉट सक्सीडेड, एंड जजेस उस चीज को नोट कर लेते हैं कि जो मेन पर्पस था इस प्रोसीडिंग का वो पूरी तरह से अचीव नहीं हुआ है। तो इस हवाले से इसलिए बहुत जरूरी है कि जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत देखभाल के बनाया जाए और विटनेसेस की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करवाई जाए, ठीक है। तो ओपनिंग स्टेटमेंट्स के अंदर हमने समझ लिया कि आपने अपना
पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो जजेस को पहुंचाना है कि व्हाट यू विल बी डूइंग इन द टाइम विच विल बी गिवन टू यू। ठीक है। अच्छा जी, डायरेक्ट एग्जामिनेशन एंड क्रॉस एग्जामिनेशन। हमने बात की कि जो विटनेसेस हैं उनके दो रोल्स हैं, इसमें ड्यूल रोल्स हैं। नंबर 1, उन्होंने डायरेक्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस का जवाब देना है, एंड नंबर 2, उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस का जवाब देना है। अब हमने बात की कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन जो है, फॉर एग्जांपल अब पहली बारी है प्रोसिक्यूशन साइड की, तो प्रोसिक्यूशन साइड अपना पहला विटनेस लेकर आ रही है और उस विटनेस के थ्रू उन्होंने ये प्रूफ करना है कि इसकी जो बात है इससे साबित होगा कि अगले शख्स ने, जो कि डिफेंस साइड पे, उसने जुर्म किया है। ठीक है। तो जो सवालात हैं इसमें आपने करने होते हैं ओपन एंड। ठीक है। अब शुरू में बात की थी कि जो मॉक ट्रायल्स हैं वो लॉ को कम देखते हैं पर्सपेक्टिव में। अगर मूट कोर्ट के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो मॉक ट्रायल्स जो है वो लॉ को कम डिस्कस करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही लॉ से वो बरीज़िमा होते हैं या वो बिल्कुल ही डिस्कशन में नहीं आती। ये चीज़ आप ओपनिंग स्टेटमेंट में भी कुछ पॉइंट्स अपने मेंशन कर सकते हैं, बल्कि कि ये लीगल प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैं एस्टैब्लिश करूंगा। ठीक है। ये इस लीगल प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैं प्रूव करूंगा और डिफेंस साइड उस चीज़ को एस्टैब्लिश कर सकती है जी कि ये लीगल प्रिंसिपल है जिसके तहत मैं प्रूफ करूंगा कि इनके जो विटनेसेस हैं दे आर नॉट रिलायबल, या इनका जो केस है इट इज नॉट रिलायबल। तो उसमें आप अपने कोई केस भी लेकर आ सकते हैं। लीगल रिसर्च होती है इसमें, लेकिन वेरी लिमिटेड। आपका जो ज्यादातर फोकस है दैट शुड बी ऑन द फैक्ट्स, दैट शुड बी ऑन द होल सिचुएशन। लॉ के हवाले से आपकी रिसर्च हो और यह है कि इस अंदाजों में हो कि जो बेसिक चीजें हैं वो कवर्ड हो, या कोई आप उसमें लॉ की प्ली दे रहे हैं तो वो कवर्ड हो, लेकिन मेनली आपने इसमें फैक्ट्स को देखना है कि उस हवाले से आप कवर्ड है। तो अब डायरेक्ट एग्जामिनेशन के अंदर हमने बात की कि आपको कुछ चीज़ों की इजाज़त होती है, कुछ चीज़ों की इजाज़त नहीं होती है। यहाँ पर देखेंगे मेंशन्ड है कि जो डायरेक्ट एग्जामिनेशन है उसमें आपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस करने हैं। उसकी वजह यह है कि डायरेक्ट एग्जामिनेशन के अंदर यू आर नॉट अलाउड टू आस्क लीडिंग क्वेश्चंस। ठीक है। लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं? लीडिंग क्वेश्चंस ऐसे सवालात होते हैं विच आर नॉट जनरल, बल्कि दे आर स्पेसिफिक। ऐसे सवालात के जिसके अंदर ही सवाल का जवाब हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रोसिक्यूशन साइड से हूं और मेरे सामने मेरा विटनेस है। ठीक है। तो मैं उससे पूछूंगा जी कि वेयर वर यू ऑन द 10th of April? दिस इज एन ओपन क्वेश्चन। इसका जो जवाब है जो मेरा विटनेस देगा तो वो खोल के बयान करेगा जी कि मैं ऑन दिस डे आई वाज हियर और मैं ये कर रहा था, और वो आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। उसका पर्पस होता है कि विटनेस ज्यादा से ज्यादा बात करे, अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करे और जजेस को एक्सप्लेनेशन दे, जूरी को एक्सप्लेनेशन दे कि वो क्या करे, तो उनका क्या पर्सपेक्टिव था। तो उसमें आपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस करना है। उसमें आपको लेकिन ये इजाजत नहीं होती कि यू आस्क लीडिंग क्वेश्चंस, ऐसा सवाल कि जिसका जवाब सवाल में मौजूद है। मैं ये नहीं पूछ सकता कि 10 अप्रैल को क्या आप रावलपिंडी के इस हिस्से में थे, क्योंकि अब इसके अंदर मैंने उनको ऑलरेडी एक जवाब दे दिया है कि जी आप इस जगह पे थे। उनका जवाब होगा हाँ या ना। अब ये सवाल डायरेक्ट एग्जामिनेशन का नहीं है और इसमें डायरेक्ट एग्जामिनेशन की इजाजत नहीं। अगर कोई लीडिंग क्वेश्चंस आस्क करता है, इसमें लीडिंग क्वेश्चंस पूछता है इसके अंदर, तो नंबर भी कटते हैं एंड द अपोजिंग साइड कैन रेज एन ऑब्जेक्शन। ठीक है। मॉक ट्रायल में एक चीज बड़ी समझने वाली है कि जो जज का रोल होता है ना वो बड़ा लिमिटेड होता है। लिमिटेड कैसे होता है कि मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स के अंदर जजेस जो है वो एक्टिवली क्वेश्चनिंग करते हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं आपसे, जो है वो एक प्रेशर भी होता है और आपसे केस सॉल्व पूछते हैं, हर चीज के ऊपर क्वेश्चन करते हैं और कर सकते हैं। मॉक ट्रायल के अंदर जो जज का रोल होता है, जो एडजुडिकेटर का रोल होता है, बड़ा लिमिटेड होता है, क्योंकि उन्होंने उस सारी की सारी प्रोसीडिंग को सिर्फ ऑब्जर्व करना होता है, और ऑब्जर्व करने के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्शंस होते हैं फ्रॉम आइदर पार्टी, उनको आइदर वो सस्टेन करेंगे या वो उनको डिसमिस करेंगे। ठीक है। तो जजेस का रोल उसमें बड़ा लिमिटेड होता है। इसलिए एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पार्टीज हैं उनकी तैयारी जो है वो इस हवाले से बड़ी होलसम हो। फॉर एग्जाम्पल, अब
प्रोसिक्यूशन साइड है, प्रोसिक्यूशन साइड अपने विटनेसेस से सारे के सारे सवालात लीडिंग कर रही है, तो अब जज खुद से नहीं कहेगा प्रोसिक्यूशन से जी कि डोंट आस्क लीडिंग क्वेश्चंस, क्योंकि जज देख रहा है सारी सिचुएशन को, जज नहीं रुकेगा। जो डिफेंस साइड है उनके अटर्नी खड़े होके जज साहब से कहेंगे जी के ऑब्जेक्शन योर ऑनर, लीडिंग क्वेश्चन, तो वहां पे जज साहब के सामने ये पॉइंट रेस करें जी कि ये जो सवालात कर रहे हैं दे आर लीडिंग क्वेश्चंस, तो जज साहब को अगर लगेगा कि लीडिंग क्वेश्चन है तो वो कहेंगे कि ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। इसका मतलब ये है कि अटर्नी से ये बात की जा रही है, प्रोसिक्यूशन के अटर्नी से कहा जा रहा है जज साहब की तरफ से कि डू नॉट आस्क लीडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। सो दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस। अगर वो फिर से लीडिंग क्वेश्चन आस्क करेंगे, पूछेंगे प्रोसिक्यूशन के जो अटर्नी हैं, तो डिफेंस फिर से वो रेस करेगी, तो फिर से ऑब्जेक्शन आएगा, जज साहब उसको देखेंगे और फिर मना करेंगे प्रोसिक्यूशन को। अब यहाँ पर बात ये भी आ जाती है कि जो एडजुडिकेशन का एक क्राइटेरिया है वो इस हवाले से भी उस चीज को देखता है कि एक तरफ तो एक पार्टी है जो कि सवालात पूछ रही है विटनेसेस से, क्या लेकिन दूसरी तरफ जो पार्टी बैठी है, डिफेंस साइड बैठी है, क्या वो खामोशी से बैठ के सिर्फ सुन ही रहे हैं, वो कोई ऑब्जेक्शंस अगर बनते हैं तो उसको रेज भी कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली दैट, हमने ये भी देखा बीच में कि फॉर एग्जांपल एक प्रोसिक्यूशन के अगर अटर्नी ऐसा सवाल कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए, या डिफेंस के अटर्नी ऐसा सवाल कर रहे हैं जो कि उनको नहीं करना चाहिए, तो ऑब्जेक्शन तो रेज हो रहा है कि जी योर ऑनर, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, लेकिन वो जो ऑब्जेक्शन आइडेंटिफाई हो रहा है ना वो गलत हो रहा है कि जी फॉर एग्जांपल मैं इसमें मिसाल देता हूँ कि अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा डिफेंस साइड के ऊपर, कि डिफेंस साइड पे जब आप आएंगे क्रॉस एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर you are allowed to ask leading questions, you are actually encouraged to ask leading questions, क्योंकि उसका मकसद होता है कि आप जो कह सकते हैं कि विटनेस है उसके जवाबात को लिमिट करें और उसको डिसमेंटल करें, उसको जो है वो अपना कह सकते हैं कि जगह संभालने ना दें, उसको कोई अपनी बात एक्सप्लेन ना करने दें, इसलिए उसको आप जवाब ही दे दें सवाल के अंदर ताकि उसका जवाब लिमिटेड रहे। अब प्रोसिक्यूशन ये देख रही है जी कि अब फॉर नंबर एक तो ये है कि जी अगर प्रोसिक्यूशन उठ के ये डिफेंस के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करती है जी कि ऑब्जेक्शन और ऑनर ये क्रॉस के अंदर अगर हो रहा है, ठीक है, कि जी लीडिंग क्वेश्चन, तो जज कहेंगे जी के यस। सर सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, विद इन 5 मिनट्स मीटिंग एंड हो जाएगी, हम एक न्यू लिंक क्रिएट करेंगे, फिर वो सारे पार्टिसिपेंट अगेन ज्वाइन कर लेंगे, इसका टाइम खत्म हो रहा है, तो फिर हम कंटिन्यू कर लेंगे। थैंक यू सर। ठीक हो गया, तो इसको हम यहाँ पे मेरा ख्याल एंड कर देते हैं और फिर आप न्यू लिंक शेयर कर लेंगे। जी सर, विद इन 1-2 मिनट्स हम न्यू लिंक शेयर कर रहे हैं, आप इसको कंटिन्यू कर लें, अभी 5 मिनट्स हैं, अगर आप इजी हैं तो जैसे आपको बेहतर लगे। थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। चलिए हम 1-2 मिनट लेते हैं, उसके बाद फिर हम जैसे ही न्यू लिंक आता है तो विल मूव ऑन। तो हम क्रॉस की बात कर रहे थे कि प्रोसिक्यूशन साइड अगर क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान ये ऑब्जेक्शन रेज करती है जी कि लीडिंग क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, लीडिंग क्वेश्चन, तो जज साहब कहेंगे जी के ऑब्जेक्शन डिनाइड, ठीक है, या डिसमिस्ड। क्यों? क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर यू कैन आस्क लीडिंग क्वेश्चन, यू मस्ट आस्क लीडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। अब अगर प्रोसिक्यूशन साइड सिर्फ एक ही सुन के आई जी कि ऑब्जेक्शन सिर्फ लीडिंग क्वेश्चन पे ही होता है, तो वो हर सवाल पे कहेंगे जी लीडिंग क्वेश्चन है, हर ऑब्जेक्शन पे में ये कहेंगे जी कि रीडिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्शंस व्हिच कैन बी रेज्ड। फॉर एग्जांपल क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर एक ऑब्जेक्शन रेज किया जा सकता है कि जी हेयर से, ठीक है, हेयर से का मतलब ये होता है जी कि ये शख्स बात कर रहा है ना, इसकी अपनी कोई स्टेटमेंट नहीं है, इसने खुद कुछ नहीं देखा, ये किसी और की बात कोट कर रहा है, तो दैट इज नॉट अलाउड। इसी तरह स्पेकुलेटिव, कि किसी को कोई बात पता नहीं है, वो उसके ऊपर लेकिन स्पेकुलेट करे कि अच्छा मेरा ख्याल है कि इस तरह हुआ होगा, तो ये एक ऑब्जेक्शन रेज हो सकता है। तो नॉट ओनली रेजिंग एन ऑब्जेक्शन इज इम्पोर्टेंट, रेजिंग द करेक्ट ऑब्जेक्शन इज ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट। इसलिए आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि यू हैव एन आइडिया, और क्योंकि जिस तरह मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन होता है ना कि
आपके पास ज़ाहिर जब केस पैकेट आएगा, केस फाइल आएगी, तो आपने डिफेंस भी के तौर पे भी क्योंकि एक्ट करना होगा और आपने प्रोसिक्यूशन के तौर पे भी एक्ट करना होगा, तो आपके पास पूरा केस है। तो आपने ना सिर्फ अपनी तरफ से केस तैयार करना है, आपने दूसरी साइड की तरफ से भी करना है। तो यू शुड हैव आइडिया कि कौन से क्वेश्चन जो है वो कहाँ पे फिट इन होंगे और कौन से फैक्ट्स कहाँ पे फिट इन होंगे और कौन से क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे नहीं जा सकते। मेरा ख्याल है कि लिंक शेयर हुआ है, तो हम न्यू लिंक ज्वाइन करते हैं एंड लेट अस जस्ट कंटिन्यू फ्रॉम देयर। ठीक है, ऑब्जेक्शंस रेज करना कितना इंपॉर्टेंट है और ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होगा कि कौन सा ऑब्जेक्शन बनता है और आपने कौन सा ऑब्जेक्शन रेज करना है। क्योंकि अगर आप गलत ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो उसका आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके पास उस चीज की वो तुक्के वाली बात नहीं है। सो यू शुड हैव गुड अंडरस्टैंडिंग कि विच पॉइंट क्वालिफाइज या विच क्वेश्चन क्वालिफाइज एज अ लीडिंग क्वेश्चन, विच क्वेश्चन qualifies या which answer qualifies as a leading question or answer, which question qualifies as you know a hearsay question। अब स्पेकुलेटिव क्वेश्चन के बारे में आप ये देखेंगे कि स्पेकुलेटिव क्वेश्चन में आपको बताया कि जो कि ऐसा जवाब लेकर आए जो कि किसी दूसरे का ख्याल हो। कि फॉर एग्जांपल जी कि मैं पूछूं कि विटनेस से मैं पूछ रहा हूँ जी कि अच्छा इस चीज के बारे में आपका क्या ख्याल है, ठीक है। या मैं पूछूं उनसे कि अच्छा आप थे तो नहीं उधर, लेकिन आपका ख्याल है किस आपका क्या ख्याल है किसने किया, हु डिड दिस क्राइम, ठीक है। तो इस तरह के मैं सवाल पूछूं तो वो स्पेकुलेटिव है, जो कि आप क्वेश्चन है कोई आपका माजिद? हमें ये समझा रहे हैं डायरेक्ट एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे करती है। क्रॉस एग्जामिनेशन के जब तुम्हारे पास क्लाइंट आता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, अभी नहीं चाहिए, लेकिन ये काम की चीज़ है नहीं। जी माजिद, आपका कोई क्वेश्चन है या आप कोई पॉइंट मेंशन करना चाह रहे हैं? मुझे लग रहा है गलती से होना। शाजिल अगर इसको मेरे ख्याल गलती से ऑन हो गया उनसे माइक्रोफोन उनका, अगर आप उसको म्यूट कर सकें तो उसको काइंडली चेक कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो मैं मेंशन ये कर रहा था कि सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि स्पेकुलेटिव क्वेश्चन क्या है या हेयर से क्वेश्चन क्या है, कहाँ पे पूछा जा सकता है, कहाँ पे नहीं पूछा जा सकता। आजकल आप लोगों के लिए आसानी खास तौर पे ये है कि यू हैव एक्सेस टू एन अमेजिंग रेंज ऑफ AI टूल्स। तो आप उनको यूज करें टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स, टू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स, टू सी कि आपकी जो सिचुएशन है उसमें हाउ दे आर बीइंग इनकॉर्पोरेट, ठीक है। आपने जो अपने केस पैकेट आपको मिलता है ना, उसमें एक चीज खास तौर पे इंश्योर करनी है कि आपने, क्योंकि फैक्ट्स का बहुत बड़ा पलंदा है उसमें, तो आपने इस चीज को बाइफरकेट करना है, आपने इस चीज को सेपरेट करना है कि कौन सा फैक्ट है जो कि आपके हक में जा रहा है, कौन सा फैक्ट है जो आपके खिलाफ जा रहा है, और कौन सा फैक्ट ऐसा है जो कि न्यूट्रल सा है। तो एक अच्छी उसमें प्रैक्टिस ये होती है, एक अच्छी एक्सरसाइज ये होती है कि आप 3 अलग अलग किस्म के या तो हाइलाइटर्स ले लें या 3 अलग अलग किस्म के पेन्स ले लें और आप उस चीज को बैठ के मार्क करें कि जी प्रोसिक्यूशन की तरफ से अगर मेरा केस है तो ये पॉइंट मेरे हक में है, ये पॉइंट मेरे खिलाफ, ये पॉइंट मेरे हक में है डिफेंस की तरफ, और डिफेंस की तरफ से भी ये करें कि जी ये पॉइंट मेरे हक में है, ये पॉइंट मेरे खिलाफ। तो ऑब्वियसली वो तैयारी इस तरह आपकी हो जाती है कि एक पार्टी के हक में जो चीजें हैं वो दूसरी पार्टी के खिलाफ है, और एक पार्टी के खिलाफ जो चीजें हैं दूसरी पार्टी के हक में है। तो इस तरह से आपकी दोनों साइड की तैयारी हो जाए। तो फैक्ट्स के ऊपर वंस अगेन आई रिइटरेट कि आपने इंश्योर करना है कि आपकी उस पर अच्छी ग्रिप। तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन के अंदर हमने बात कर ली कि यू आर नॉट अलाउड टू आस्क लीडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। आपने ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने हैं, आपने उसमें ऐसे सवाल पूछने हैं जिससे विटनेस को मौका मिले कि वो अपनी बात को ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। आपने उसको बिल्कुल सीधा सवाल करना है, जिसमें मैंने बताया जी कि फॉर एग्जांपल आपने
उससे पूछना है कि जी एग्जैक्ट नहीं पूछना कि आप इस जगह पे तो नहीं थे, लेकिन आपने पूछना है कि इस तारीख को आप किधर से, ठीक है। अच्छा, उसने आपको बता दिया आप उधर क्या कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद आपने पूछा कि जी आपका क्वेश्चन है भी। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्शंस की कोई लिमिटेशंस भी हैं, और अगर एक स्पेसिफाइड लिमिट तक ऑब्जेक्शंस जो हैं वो सस्टेन हो जाए तो उसकी कोई पेनल्टी भी है फिर? बिल्कुल ठीक है। देखिए इसमें जो मुझे समझ आई तो ऑब्जेक्शन रेज करने की कोई पेनल्टी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक साइड जो है वो सवाल ही सारे के सारे ऐसे पूछे जो उनको नहीं पूछने हैं, तो यकीनी तौर पे दूसरी तरफ से ऑब्जेक्शंस भी उसी की तनाजुर में होने चाहिए। अगर 10 सवाल पूछे गए हैं जो कि नहीं पूछे जाने चाहिए थे, तो 10 ऑब्जेक्शन होने चाहिए, विच शोज। और अगर सस्टेन हो रहे हैं तो वो उस पार्टी के लिए तो बहुत अच्छा है जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया है। हाँ, जो दूसरी पार्टी है जो कि वो क्वेश्चंस पूछ रही है, उसके लिए तशवीश की बात है। तो कोई लिमिटेशन तो नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर जो ट्रायल है वो तो चलना है, वो जो प्रोसीजर एक है वो तो चल रहा है, अपना टाइम पूरा होगा। लेकिन यकीनी तौर पे एक जजेस के ऊपर उसका इफेक्ट चला गया होगा कि जी दे आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड, इनको नहीं पता कि कौन से सवालात इन्होंने पूछने हैं, कौन से नहीं पूछने, कौन से सवालात ये पूछ सकते हैं, कौन से नहीं पूछ सकते। तो इस हवाले से ज़ाहिर है वो आपकी नंबर में फ़र्क आता है। कोई बात है, देखिए मॉक ट्रायल का क्योंकि पर्पज़ ये होता है कि आपने उस एक्टिविटी के गो थ्रू करना है, और वहाँ पे जजेस बैठे उन्होंने कोई उस केस का फैसला तो देना नहीं है, या उसकी बुनियाद पे कोई हक और बातिल का फैसला तो होना नहीं है, ठीक है। उसकी बुनियाद पे फैसला सिर्फ ये होना है कि कौन सी पार्टी अगले कौन सी साइड जो है वो अगले राउंड में जाएगी, कौन सी साइड अगले राउंड में नहीं जाएगी। तो आपने इस चीज़ को इसलिए कंसिडर करना है कि व्हाट इज द जजिंग क्राइटेरिया। तो लेकिन एवरीडे ट्रायल्स के अंदर भी जब आप प्रैक्टिकली कोर्ट्स में देखेंगे तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली एक दो जब इंसान गलतियां करते हैं, यू गेट द क्यू कि ओके आई एम नॉट सपोज्ड टू डू इट अगेन, तो यू डू नॉट डू दैट, क्योंकि उससे जज साहब भी फिर या साहिबा दोनों ही उससे जो है ना वो एजिटेट भी हो सकते हैं, और वो प्रोसीडिंग का एक जो तसलसल है वो खराब होता है कि वो ऑब्जेक्शन और वो सारा सेटअप चल रहा है और विटनेस बीच में रह जाता है, तो फिर आपकी विटनेस की जितनी अच्छी तैयारी हो इट वुड बी इररिलेवेंट, ठीक है। तो कोई उस तरह की एज सच लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि इसलिए आपने जो है वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन के अंदर पूछने हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्योंकि फिर क्रॉस में जब आप जाएंगे ना तो वहां पर आपने फिर एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछने हैं, आपने स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछने हैं, आपने विटनेस से जवाब उगलवाना है। एक बात की जाती है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से कि नेवर आस्क क्वेश्चन द आंसर टू विच यू डू नॉट नो, कि ऐसा कोई सवाल आप ना पूछें कि जिसका आपको जवाब ना पता हो, ठीक है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन इतनी क्रिटिकल होती है, और आपका जो कहते हैं ना कि केस बनता या खराब होता है वो क्रॉस एग्जामिनेशन में ही होता है। क्यों? क्योंकि हमने पहले बात की कि क्रॉस एग्जामिनेशन का पर्पस है कि विटनेस को डिसमेंटल कर देना, ठीक है। अब डायरेक्ट एग्जामिनेशन के अंदर विटनेस हम थोड़ा सा अच्छा इसको मजीद, एक तो असल में इसमें इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, तो आई विल ट्राई कि मैं इसको जो है ना वो इस तरह से समेटूं कि आप सब तक कम्युनिकेट भी हो जाए, एंड यह है कि एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतरीन अंदाज में हो, तो कोशिश करते हैं। तो अब हम एक लम्हे के लिए डायरेक्ट एग्जामिनेशन के अंदर विटनेस को देखते हैं। प्रोसिक्यूशन की साइड से चल रही है अभी डायरेक्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। प्रोसिक्यूशन ने सवाल किया, ओपन एंडेड सवाल किया, विटनेस उसका जवाब दे दिया, ठीक है, और उसने उसमें एक्सप्लेन किया है कि जी मैं आप किधर थे इस तारीख को, मैं इधर था, मैं ये कर रहा था, ये वो फलाना ढिमकाना, सारी चीजें हो, ठीक है। अगला सवाल हुआ, उससे अगला हुआ, हो गया, डन। उसके बाद जब विटनेस को प्रोसिक्यूशन साइड ने कर लिया डायरेक्ट एग्जामिन, तो फिर जज साहब कहेंगे कि जी डिफेंस वुड यू लाइक टू क्रॉस एग्जामिन, तो डिफेंस आएंगे, डिफेंस के जो अटर्नी हैं वो आएंगे और फिर वो उसी विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करेंगे, ठीक है। तो अब जो विटनेस ने अपनी एग्जामिनेशन इन चीफ या डायरेक्ट एग्जामिनेशन के अंदर पॉइंट्स एस्टैब्लिश किए हैं या जो उसने स्टांस रखा है, उसने उस चीज को याद भी रखा है कि जी मैंने ये बात कही थी। ये ना हो कि उसने अपने प्रोसिक्यूशन के अटर्नी को तो एक जवाब दे दिया है, लेकिन वही सवाल घुमा फिरा के जब किया डिफेंस के अटर्नी ने, तो उसने अपनी बात चेंज कर दी, ठीक है।
यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज से मुतारफ भी करवाना चाहूंगा, विच इज वंडरफुल थिंग। मुझे नहीं आइडिया कि आप लोग कौन से ईयर से हैं, या क्या आप लोग का सीआरपीसी या पीपीसी वगैरह कितना पढ़ लिया है, वो चीज़ आपने कितनी देखी है। लेकिन जस्ट फॉर अ मोमेंट, इस पे हम वैसे बाद में भी आएंगे टुवर्ड्स द एंड एज वेल। मैं चाहूंगा कि आप लोग में देखें कि खास तौर पे इन चीज़ों की आप कह सकते हैं कि टेक्निक्स है, क्रॉस एग्जामिनेशन की टेक्निक्स है। इट इज सेट कि क्रॉस एग्जामिनेशन इज एन आर्ट। आप लोग का कल जो है वो लेक्चर है मेरे ख्याल में मियां अली हैदर साहब के साथ, तो इंशाल्लाह ही विल गाइड यू मच बेटर ऑन इट। लेकिन वो चीज़ें आपने मॉक ट्रायल में भी इम्प्लीमेंट करनी है, मॉक ट्रायल्स को सीखने हैं आप, मॉक ट्रायल में आपने उस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। तो क्रॉस एग्जामिनेशन की बाकायदा टेक्निक्स हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने किन चीज़ों को टारगेट करना है, क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने किन चीज़ों को इस्टेब्लिश करना है और किस तरह से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एक नाम नोट कर लें, अर्विंग यंगर। ठीक है, अगर आप में से किसी ने पहले नहीं सुना तो मैं आप लोग के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर दूंगा। अर्विंग यंगर साहब ने दो बड़ी कमाल चीज़ें दी क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से। Number one is Irving Younger's 10 commandments of cross examination, and the second is Irving Younger's 9 pigeonholes. ठीक है, 10 commandments of cross examination के अंदर उनकी clear cut orders हैं एक तरह से कि be precise, ask small questions, don't argue, don't quarrel. 10 commandments हैं असल में। ठीक है, बहुत ही to the point है क्रॉस एग्जामिनेशन के हवाले से। 9 पिजन होल्स के अंदर वो बात करते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं कि जिसके जरिए से आपने विटनेस को क्रम्बल करवाना है, विटनेस को आपने डिसमेंटल करना है, किन चीजों को आपने टारगेट करना है। तो उसमें से एक चीज है कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। कि फॉर एग्जांपल अब प्रोसिक्यूशन के सामने विटनेस ने अपनी स्टांस लिया था जी कि मैं इस तारीख को इधर था। अब दूसरी साइड से अगर डिफेंस अटर्नी आता है और वो क्रॉस एग्जामिन करता है और वो एक सवाल करता है, दो करता है, तीन करता है, 4-5 सवालों के बाद, 6 सवालों के बाद वो ये वावर करा देता है जी कि इस तारीख को कम से कम ये उधर तो शख्स नहीं था जिधर इसने कहा है, तो वो आ गई कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ स्टेटमेंट। उससे क्या हुआ, उससे उस विटनेस की जो क्रेडिबिलिटी है वो हर्ट होगी, और वो क्रेडिबिलिटी हर्ट होगी तो दैट इज इनफ टू मेक हिम लूज द केस। ठीक है, अब यहाँ पर एक लीगल पॉइंट भी आ जाता है कि क्या अगर एक चीज एस्टैब्लिश कर दी जी कि फॉर एग्जांपल विटनेस कहता है जी कि मैं 10 अप्रैल को पिंडी के इस इलाके में था, बिल्कुल मैं आप लोग को भेज भी दूंगा और मैं आप लोग के ऑर्गेनाइजर्स को भी भेज दूंगा, नाम जरा ट्रिकी सा है तो बिल्कुल नो वरीज। तो क्या बात हो रही थी, अच्छा, तो अब बात की हुई कि जी 10 अप्रैल को विटनेस ने कह दिया जी कि मैं 10 अप्रैल को पिंडी के इस हिस्से में था। ठीक है जी, और इस चीज को आके डिफेंस के अटर्नी ने अपने क्वेश्चन से एस्टैब्लिश कर दिया कि जी यस बेहतरीन कि जी 10 अप्रैल को कम से कम पिंडी में तो नहीं था। ठीक है, तो क्या इससे ये कंसिडर कर लिया जाएगा जी कि वो जो विटनेस था वो प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ द इंसिडेंट पे था या प्लेस ऑफ अकरेंस ऑफ द क्राइम पे था? क्या इस चीज को ऑटोमेटिकली कंसिडर कर लिया जाएगा? तो लीगली ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीज हो भी जाए तो लीगल कवर उसको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसलिए लीगल जो डिस्कशन है ना, इसमें वो बैकिंग के लिए होती है। फ्रंट पे आपके फैक्ट्स खेलते हैं और बैकग्राउंड में आपके जो है वो लीगल डिस्कशन होती है। बैकग्राउंड में आपके लीगल पॉइंट्स होते हैं, लीगल प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि उन विटनेसेस को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, उनके ब्लंडर्स को कवर प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह की चीजें भी आपने देखनी है। ठीक है, तो अच्छा, अब हमने बात की जी कि प्रोसिक्यूशन साइड है, पहला विटनेस आया, प्रोसिक्यूशन साइड ने उसको डायरेक्ट एग्जामिन किया, डिफेंस अटर्नी आया, डिफेंस अटर्नी ने उसको क्रॉस एग्जामिन कर लिया। क्रॉस एग्जामिन के अंदर हमने बात की जी कि यू आर अलाउड टू आस्क लीडिंग क्वेश्चंस, यू आर इनकरेज्ड टू आस्क लीडिंग क्वेश्चंस, ताकि आप अपने सवाल का जवाब निकलवाएं। एक और भी बात कही जाती है कि, और ये आप लोग देखेंगे भी इंशाल्लाह व्हेन यू सी इट इन द कोर्ट्स, कि जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रही होती है ना, तो बहुत सारे जो वकला हैं जो क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं,
तो वो एक सवाल का जवाब अपनी मर्जी का निकलवाने के लिए 8 इररेलेवेंट क्वेश्चंस भी पूछेंगे, ठीक है, कि ग्लास, पानी का ग्लास है, पानी के ग्लास में अच्छा पूछेंगे जी कि ठंडा पानी था, गर्म पानी था, कौन किस किस्म का ग्लास था, या ग्लास छोटा था, लंबा था, बड़ा था, किस तरह का था, शेप किस तरह की थी। ये सारी चीजें बज़ाहिर इररिलेवेंट लगेंगी, लेकिन जब वो 8वें सवाल पे पहुंचेंगे ना तो उस चीज को कवर अप कर, ठीक है। तो एक चीज एक और जो कि मैं आप लोग से रिकमेंड करूंगा वो ये है, आप लोग रिकमेंड करूंगा कि सवालात का ज्यादा होना जरूरी नहीं है, लेकिन सवालात का जो है वो पॉइंट को प्रूफ करना जरूरी है। तो हमने ये भी देखा है कि जी जो विटनेसेस अटर्नीज होते हैं वो बहुत लंबी लिस्ट बना के लाए हुए हैं सवालात की, और वो जल्दी जल्दी पूछे जा रहे हैं एंड इतनी तेजी से वो कर रहे हैं कि ना वो खुद उस चीज को समझ पा रहे हैं जी कि विटनेस ने पॉइंट प्रूफ क्या किया है या डिनाई क्या किया है, और ना ही विटनेस उस चीज का सवाल का जवाब सही से दे पा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को भी आपने इंश्योर करना है कि, एंड दिस इज बोथ इन डायरेक्ट एग्जामिनेशन एज वेल एज इन क्रॉस एग्जामिनेशन, कि आपने जो सवाल किया है उसका आप जवाब सुने, गौर से सुने, और उसके हवाले से फिर आप आगे बढ़े। ये ना हो कि जी अभी विटनेस ने अपना जवाब देना पूरा नहीं किया तो जी आपने अगला सवाल दाग दिया है, या आपने उसके ऊपर मजीद प्रेशराइज करने की कोशिश की, बिकॉज दीज थिंग्स एट नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। तो सवाल करना है, सवाल का जवाब सुनना है, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड कीप थिंग्स सिंपल, ठीक है। कभी कभार ब्यूटी लाइज इन दैट सिंप्लिसिटी, ठीक है, तो उस चीज को आपने टारगेट करना है। अच्छा, तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो गई, उसके बाद फिर जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो गई, डिफेंस ने अपने सवालात कर लिए और विटनेसेस ने उसके जो भी जवाब दे दिए, उसके बाद फिर पूछा जाता है प्रोसिक्यूशन से कि वुड यू लाइक टू री एग्जामिन। वो कहते हैं नहीं तो नहीं, वो कहते हैं हाँ तो हाँ। री एग्जामिन आमतौर पे कम ही किया जाता है, लेकिन किया जा भी सकता है, उसमें हर्ज कोई नहीं होता। अच्छा, अब ये हो गया प्रोसिक्यूशन साइड। अच्छा, अब ये हो गया, फिर प्रोसिक्यूशन का पहला विटनेस जब खत्म हो गया तो प्रोसिक्यूशन का दूसरा विटनेस आएगा, बिकॉज हमने पहले बात की ना कि टीम के अंदर 2 विटनेसेस हैं, 2 अटर्नीज हैं। तो इसमें एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है जी कि अगर एक विटनेस को पहले प्रोसिक्यूटर ने एग्जामिनेशन डायरेक्ट एग्जामिन किया है, तो जो दूसरा विटनेस है उसको दूसरा अटर्नी डायरेक्ट एग्जामिन करे। इससे जो बैलेंस है टीम का वो मेंटेन रहता है, एवरीवन गेट्स दैट अपॉर्चुनिटी। सेम प्रोसीजर कि दूसरा विटनेस आया, दूसरा प्रोसिक्यूटर आया, अटर्नी आया, उन्होंने डायरेक्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट की, उसके बाद फिर डिफेंस साइड के दूसरे अटर्नी आए, उन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया, उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन कर ली, उसके बाद वो वापस गए, फिर री एग्जामिनेशन से के लिए पूछा गया डिफेंस प्रोसिक्यूटर के दूसरे अटर्नी से कि जी आया कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। यहाँ पे जब ये चीज होगी तो एक इसका फेस कंप्लीट हो गया। अब डिफेंस की बारी है, एंड सेम डिफेंस अटर्नी आएगा, पहले अपना पहला विटनेस प्रेजेंट करेंगे, डिफेंस अटर्नी उसके ऊपर जो है वो डायरेक्ट एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद डायरेक्ट एग्जामिनेशन जब हो जाती है तो प्रोसिक्यूशन साइड से आप पहले अटर्नी आएंगे, वो उस विटनेस की क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। क्रॉस एग्जामिनेशन कर ली उस विटनेस की, तो फिर उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाती है चीज तो फिर अब आ जाएंगे री एग्जामिनेशन की तरफ। अगर डिफेंस ने अटर्नी ने करनी है, अगर नहीं करनी तो दूसरा विटनेस प्रेजेंट हो जाएगा। दूसरा विटनेस प्रेजेंट होगा, सेम प्रोसीजर, पहले डिफेंस के अटर्नी ने उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ की, और उसके बाद फिर प्रोसिक्यूशन अटर्नी ने उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन की, फिर डिफेंस अटर्नी ने अगर करना चाहा तो उसकी उसने री एग्जामिनेशन की, और यहाँ पे अब इसका दूसरा फेज भी, या एक तरह से अगर आप ओपनिंग स्टेटमेंट से लगाएं तो तीसरा फेज मुकम्मल हो गया। ओपनिंग स्टेटमेंट, प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस की टेस्टिमनीज, ठीक है, और इसको टेस्टिमनी कहते हैं, जो विटनेसेस अपनी बात करते हैं तो दोज आर टेस्टिमनीज। तो पहले प्रोसिक्यूशन की विटनेस की टेस्टिमनीज हो गई, फिर डिफेंस की विटनेसेस की टेस्टिमनीज हो गई, तो 3 फेजेस ये हो गए। उसके बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट्स। क्लोजिंग स्टेटमेंट्स क्या है जी? क्लोजिंग स्टेटमेंट के अंदर जो अटर्नीज हैं, अब मैंने इसमें आपसे कहा था कि बैलेंस मेंटेन करने के लिए इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि अगर जो है वो एक पहले अटर्नी ने ओपनिंग स्टेटमेंट की है तो दूसरा जो अटर्नी है वो क्लोजिंग स्टेटमेंट कर ले, ठीक है। इट इज अप टू यू गाइस, आपकी टीम में ऑब्वियसली यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इट इज रिकमेंडेड,
because that ensures कि teamwork is maintained, that ensures the balance is maintained. Closing statement में क्या है, ठीक है? Closing statement के अंदर आप जो है वो बात करते हैं कि जी जो मैंने पॉइंट्स आपको शुरू में कहे थे ओपनिंग स्टेटमेंट में वो ये थे, और अब मैंने अपनी इस बात से इस चीज को प्रूफ कर दिया है कि ऐसा ही है. तो जो प्रोसिक्यूशन साइड है वो अपने जो स्टांसेस हैं उनके हवाले से दिखाएगी जी कि हमने ये प्रूफ कर दिया है और हमने इस तरह प्रूफ किया है, और जो डिफेंस साइड है वो भी इसी तरह से प्रूफ करेगी जी कि हमने जिस चीज को डिसप्रूफ करना था तो हमने उस चीज को इस तरह से इस विटनेस की इस बात से स्टैब्लिश कर दिया है. तो वो एक समरी आपने बयान करनी होती है जी कि हमने अभी क्या किया है. तो ओपनिंग स्टेटमेंट हो गई जी कि आपने बताया कि हम क्या करने वाले हैं अभी इस आगे प्रोसीजर में, और क्लोजिंग स्टेटमेंट में बताया आपने कि हमने क्या कर दिया है. तो प्रोसिक्यूशन की पहले होती है ओपनिंग स्टेटमेंट और फिर डिफेंस की ओपनिंग स्टेटमेंट होती है, एंड दैट कंक्लूड्स द होल राउंड ऑफ. ठीक है जी. तो अब यहाँ पर आपके जो राउंड्स है ना वो हो जाते हैं कंप्लीट. इंपॉर्टेंट चीज इसमें जिससे मैंने आपसे कहा कि प्रिपरेशन इज की, कि आपकी जो फैक्ट्स के हवाले से डिस्कशन है, अंडरस्टैंडिंग है, दैट इज अप टू द मार्क. आपकी जो रोल्स हैं उसके हवाले से जो कह सकते हैं तैयारी है, दैट इज अप टू द मार्क. यू नो कि आपने कौन सी बात करनी है, कौन सी नहीं करनी, कौन सा सवाल करना है, कौन सा नहीं करना. अगर ऐसा सवाल हो गया जो कि मतलब क्रिटिकल है, उसका क्या जवाब होना है. तो इट इज़ अ वेरी 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 फन प्रोसेस, एंड ये है कि इट इज़ वेरी एक्टिव. तो इसमें जो है वो तैयारी आपकी इस हवाले से पक्की होनी चाहिए, एंड कॉन्फिडेंस ऑब्वियसली कि अब एक विटनेस है वो जो भी स्टेटमेंट दे रहा है, तो अगर वो कॉन्फिडेंस के साथ देगा तो शायद अटर्नी को अपना सवाल भी भूल जाए, या अपना सवाल उस हिसाब से ना कर सके, या वो जज को वो बावर ना करवा सके जो चाह रहे हैं, क्योंकि विटनेस अपने सवाल के जवाब में इतना कॉन्फिडेंट था. ठीक है. या इसी कॉन्फिडेंस के साथ अगर कोई अटर्नी जो है वो सवाल करता है तो हो सकता है विटनेस पजल हो जाए, और विटनेसेस पजल हो भी जाते हैं. तो प्रिपरेशन एंड कॉन्फिडेंस, इन दो बुनियादी चीजों के ऊपर आपको एडजुडिकेट भी किया जाता है, और यही चीजें हैं जो कि आपकी जो कामयाबी है या नाकामी है टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉम्पिटिशन उस चीज को इंश्योर भी करती है. ठीक है. अब जो ये सारे प्रोसेस है, ठीक है, इसमें यकीनी तौर पे आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया है कि किस कदर ये एक तो प्रैक्टिकल चीज है. ठीक है. बिकॉज इंटरेस्टिंगली एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मूड कोर्ट कंपटीशन से ज्यादा रेलेवेंट है फॉर द लॉ स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने बात की कि जो मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स हैं दे आर अ सिमुलेशन ऑफ द अपीलेट कोर्ट्स, द हायर कोर्ट्स. अब अपीलेट कोर्ट, हाई कोर्ट, आप जब निकलेंगे यहाँ से डिग्री करके, जिस भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो 6 महीने तो आपने वैसे इंटर्नशिप करनी है, अप्रेंटिसशिप करनी है. उसके बाद आपको मिलेगा लाइसेंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का. 2 साल आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की प्रैक्टिस करी, उसके बाद आपको हाई कोर्ट का लाइसेंस मिलेगा. और हाई कोर्ट का आपको केस कब मिलता है पहला, नो वन नोस. इट कैन बी गिवन टू यू, वो आपके पास आ सकता है 2 साल में भी आ सकता है हाई कोर्ट का लाइसेंस आने के बाद, 4 साल भी बाद आ सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है. लेकिन आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो केसेस हैं दे आर मोर इन देयर नंबर, और वो ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ चीजें चलती हैं. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस इसलिए रिलेटिवली कम होते हैं, और रिसेंटली तो अभी हालात ये हो गए हैं कि बहुत सारे हाई कोर्ट के केसेस जो हैं उनको वापस रेफर कर दिया जाता है टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. तो जो ट्रायल का प्रोसेस है ये होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर, एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू विल बी कमिंग फेस टू फेस एज सून एज यू एंटर द फील्ड, और ये आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट होगा. तो इसलिए इस हवाले से जो है ना वो जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी अच्छी तैयारी करेंगे, यू विल गेट दैट आइडिया. ऑब्वियसली थिंग्स आर नॉट सेम टू सेम, देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल, लेकिन इट विल गिव यू अ गुड आइडिया इन रिगार्ड्स टू हाउ टू प्रोसीड. ठीक है. कॉन्फिडेंस मेडल देंगे, आपकी जो स्पीकिंग की एबिलिटीज हैं उस हवाले से आपकी जो है ना वो एक आपको कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. टीम वर्क के हवाले से देखें, टीम वर्क इसमें इतना अहम है कि अगर तो आपकी टीम के साथ अंडरस्टैंडिंग ठीक है, अगर तो टीम के साथ आपकी एक जो कहते हैं ना कि आप सही से जेल हुए हैं, तो फिर तो आपके लिए चीज़ों को लेके चलना बड़ा आसान होगा.
अगर लेकिन टीम के साथ अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है या टीम वाले मिल के काम करने के हक में नहीं है, या देयर इज वन गाय और वन गर्ल हु लाइक्स टू वर्क सोलो, तो मॉक ट्रायल में दैट विल एंड अप डिजास्ट्रसली, क्योंकि आपने क्या देखा कि ईच रोल इज इंटरकनेक्टेड, विटनेस प्रोसिक्यूशन, विटनेस अटर्नी, ठीक है। तो विटनेस की तैयारी अगर खराब होगी तो अटर्नी की तैयारी अच्छी भी हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, अटर्नी की तैयारी खराब है तो विटनेस की तैयारी जितनी भी अच्छी हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इस चीज को आपने इंश्योर करना है कि टीम वर्क हो और आपने कोहेरेंटली एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलना है, और इसलिए all of you should know the whole case so that you can ensure कि you have a wholesome participation, और ऐसा ना हो कि आपके पास bits and pieces हों तो you get puzzled, ठीक है। तो इसी हवाले से as I mentioned कि अपनी तैयारी को, अपनी जो लिसनिंग की अपनी कह सकते हैं कि एबिलिटी है उसको इंश्योर करें कि जब फॉर एग्जांपल अब कोई एग्जामिनेशन इन चीफ हो रही है तो दूसरी साइड के जो अटर्नी है वो ऐसा ना हो कि दे आर जस्ट सिटिंग एंड दे आर सीइंग अच्छा जी अब क्या बात हो रही है, डजंट मैटर, वो बैठ के नोट्स ले लेंगे, अच्छा यार इसने ये बात मानी है, ये बात मानी है, बात मानी है, मैंने इस चीज को नेगेट करना है, वो अपनी दुनिया में ना हो, ठीक है। इसी तरह से जब क्रॉस एग्जामिनेशन चल रही हो तो जिस अटर्नी ने एग्जामिनेशन इन चीफ की थी, जो भी अटर्नी की बारी चल रही है, विटनेस की डिफेंस की बारी चल रही है, प्रोसिक्यूशन की बारी चल रही है, तो जिस क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जिस अटर्नी ने एग्जामिनेशन इन चीफ की थी उसको चाहिए कि वो बैठ के नोट करो जी कि अच्छा ये गलती है, या ये उस चीज को कवर नहीं किया, या इस हवाले से वो पजल कर रहा है मेरे विटनेस को, ताकि अगर री एग्जामिनेशन वो करे आके तो उसमें वो उन चीजों को कवर अप कर सके, वो उन चीजों को मैनेज कर सके, और उसी तरह से जो है वो फिर इंश्योर करेगा कि जी अगर कोई स्पिल ओवर है विटनेस की तरफ से तो वो चीज जो है एक डिजास्टर क्राइसिस मैनेजमेंट हो जाए उस चीज की। इसलिए यू शुड ऑल बी ऑन योर टोज, और हर वक्त यू शुड बी मेकिंग नोट्स ड्यूरिंग द होल कॉम्पिटिशन, ड्यूरिंग द होल राउंड, कि ताकि क्लैरिटी हो कि क्या बात प्रूफ करनी है, क्या बात डिसप्रूफ करनी है, और किसका क्या स्टांस है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि यू शुड बी रिमेम्बरिंग कि आपका क्या स्टांस था, ठीक है। ये विटनेसेस के लिए भी है और ये अटर्नीज के लिए भी है। अगर आप यही भूल गए कि मैंने किस चीज को कंसीड किया था या किस चीज को मैंने एस्टैब्लिश किया था, तो फिर दूसरा अटर्नी आपको डिसमेंटल कर देगा, वो आपसे एक सवाल ऐसा करेगा एंड यू वुड बी ending your performance there, because all it takes is one question, one good question, or a couple of starter questions, and then such a question, जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे 7-8 इरेलेवेंट सवाल करने के बाद 8वां सवाल होता है जिसके जवाब के लिए वो 7-8 सवाल करते हैं। तो इसलिए यू शुड बी रिमेम्बरिंग कि आपके क्या स्टांसेस हैं, और इसलिए तैयारी अच्छी करनी है, यू डोंट पुट थिंग्स टू द वेरी लास्ट बिट, और क्लैरिटी के साथ चीज़ों को लेके चलना है, ठीक है ना। वेरी कह सकते हैं कि क्लियर आपका स्टांस होना चाहिए, क्लियर आपकी अप्रोच होनी चाहिए, और कंसाइज हो, ठीक है, और क्लियर हो, ठीक है, एंड दैट इंश्योर्स। अगर लंबी कहानी में जाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो मिक्सअप कर जाएंगे। तो ये है कि बी कंसाइज, बी क्लियर, एंड इंश्योर कि आप जो है वो अकॉर्डिंगली उसको कह सकते हैं कि परफॉर्म करें, ठीक है जी। टीम वर्क की हमने बात कर ली कि टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड, ठीक है जी। तो ये उसका ओवरव्यू है इन रिगार्ड्स टू मॉक ट्रायल्स किस कदर अहम है एंड हाउ थिंग्स प्रोसीड। देयर आर मल्टीपल टेक्निक्स फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन, मैंने दो आपके साथ जिक्र की हैं, ठीक है। लेकिन ये कि द जनरल आइडिया ऑफ द होल कॉम्पिटिशन इज दिस, तो वो आपको पता हो ताकि ये कि व्हेन यू आर गोइंग इनटू द होल राउंड तो उस चीज को आप इंश्योर कर सकें कि यू आर वेल प्रिपेयर्ड, यू आर वेल इक्विप्ड, एंड यू कैन इंश्योर कि आपकी जो परफॉर्मेंस है इट इज अप टू द मार्क, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं, बिकॉज आई एम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि जो क्वेश्चंस होते हैं ना दे इंश्योर कि चीज़ों के बारे से क्लैरिटी हो।
अच्छा जी, एक क्वेश्चन है कि सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी इफेक्टिवली कनेक्ट आवर थियोरेटिकल लीगल नॉलेज विद प्रैक्टिकल एडवोकेसी स्किल्स ड्यूरिंग अ मॉक ट्रायल? बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैंने आपको इस तरह बताया कि मॉक ट्रायल इज प्रोबेबली द मोस्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस व्हिच यू विल बी डूइंग इन योर लॉ स्कूल, because that is the closest to what you will be doing in the courts and on a day-to-day basis, hopefully. ठीक है, तो जब आप पीपीसी पढ़ते हैं, जब आप सीआरपीसी पढ़ते हैं, तो आपको एक तो उसकी लीगल अंडरस्टैंडिंग तो हो, लेकिन मॉक ट्रायल आपको, मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट ऑल अबाउट द लॉ, it is about techniques and it is about the understanding of how to implement the law. ठीक है, it is not only theoretical बातें नहीं है। अब क्योंकि हायर कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में आप जाएं या आप तो उसकी अवेलेबल भी हैं स्ट्रीम्स, तो उसमें आप देखेंगे बहुत सारे थ्योरेटिकल डिस्कशन होती है, उसमें फिलोसॉफिकल डिस्कशंस हो रही होती हैं। जो ट्रायल्स होते हैं, मॉक ट्रायल्स होते हैं, दे आर वेरी प्रैक्टिकल इन दिस रिगार्ड। ठीक है, दे आर वेरी क्लियर इन दिस रिगार्ड, और इसलिए उसमें जो टेक्निक्स हैं, अब जिस तरह मैं बता रहा हूँ, जस्ट लेट मी, बल्कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता भी हूँ कि टेक्निक्स कुछ सर्विंग एंगर की उसमें क्या कहते हैं। क्या अच्छा जी, अच्छा, अब ये है जो मैंने आपसे कहा था कि 10 कमांडमेंट्स ऑफ अर्विंग यंगर रिगार्डिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। तो अब उसमें क्या कह रहे हैं, बी ब्रीफ। ठीक है, कि बहुत खुली बात सवाल जो करें वो ब्रीफ करें। ठीक है, छोटे करें, लिमिटेड करें, कम अल्फाज में ज्यादा बात करें। ठीक है, यूज प्लेन वर्ड्स, चीजों को कॉम्प्लेक्स ना बनाएं, कोई उसको आप कंफ्यूजिंग ना बनाएं, उसको जितना सिंपल रखेंगे, जितने आसान अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, विटनेस के लिए भी सवाल का जवाब देना आसान होगा, एंड आपका जो असल पर्पस है वो उसका पॉइंट डिसमेंटल करना है, ना कि विटनेस को जो है वो सवाल से परेशान करना जी, कि वो सवाल का मतलब सवाल के अंदर कोई अगर वर्ड ऐसा है जो कि मुश्किल है तो वो उसके ऊपर सोचता है, तो आपने पॉइंट को डिसमेंटल करना है। ठीक है, यूज ओनली लीडिंग क्वेश्चन। अब मतलब ये इनका जो कॉन्सेप्ट है तो इतना इस बारे स्ट्रिक्ट है, वो कहते हैं जी कि आप पूछे ही लीडिंग क्वेश्चन, कि क्रॉस एग्जामिनेशन में ओनली आस्क लीडिंग क्वेश्चन, ताकि आपका हर सवाल जो है इट इज वेरी बेनिफिशियल टू योर होल कॉन्सेप्ट, टू योर होल केस। ठीक है, इसी तरह से वो कह रहे हैं जी कि बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड एंड यू शुड नो कि किस सवाल का क्या जवाब आपको मिलेगा। ठीक है, वही मैंने जो बात की कि आस्क दोस क्वेश्चन जिसका आपको जवाब पता हो। अगर ऐसा कोई सवाल कर लिया जिसका जवाब आपको पता नहीं है और उसका जवाब आपके खिलाफ जाएगा, तो देन देयर डन, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, बी प्रिपेयर्ड, लिसन, जो विटनेस बात कर रहा है उसको बहुत गौर से सुने, थॉरली सुने उसको, ताकि आप फिर अकॉर्डिंगली उसको देख सकें। आपका ध्यान इस पे नहीं होना चाहिए कि मैं अगर 15 सवाल लेकर आया तो मैंने 15 किए बगैर में नहीं जाऊंगा। जो जजेस है उनको वो चीज नहीं इतनी कोई कह सकते हैं कि चार्म कर रही, उनको चीज चार्म ये करेगी जी कि आपने जो पॉइंट डिस्प्रूव करना था, क्या आपने उसको किया है या नहीं किया है, डिपेंडिंग अपॉन वॉट एवर साइड यू आर। तो दैट इज द की रेलेवेंस ऑफ इट। डू नॉट क्वारल। ये हम बहुत ज्यादा देखते हैं जी कि विटनेसेस जो है या तो अटर्नी के साथ क्वारल कर रहे हैं, या जो अटर्नी है वो विटनेस के साथ क्वारल करना शुरू करें, बहस करना शुरू कर दी। तो बहस वाली कोई सिचुएशन पैदा नहीं करनी है। सवाल का जवाब मिलता है, वेल एंड गुड, नहीं मिलता, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ठीक है, रिपीटिशन, ये ना हो आप बार बार एक सवाल कर रहे हैं, उससे जजेस भी तंग होते हैं, विटनेसेस भी तंग होते हैं, और इसमें तो टाइम ही बहुत शॉर्ट होता है आपके पास 1 घंटे के अंदर, और इस 1 घंटे में 10 मिनट तो निकल गए दोनों अटर्नीज की ओपनिंग स्टेटमेंट्स के अंदर। उसके बाद अगर आप पीछे लगा लें जी कि 50 मिनट है और एंड पे 10 मिनट रख लिया आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट्स के पास, तो दोनों पार्टीज के पास सिर्फ 20-20 मिनट है अपने विटनेसेस की टेस्टिमनीज करवाने के लिए। 10 मिनट एक साइड की, बल्कि 5 मिनट एक साइड की हो गई, फिर उसकी क्रॉस होगी 5 मिनट, फिर 5 मिनट दूसरी साइड दूसरी विटनेस की, फिर 5 मिनट क्रॉस होगी। तो यू डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू आस्क इररिलेवेंट क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जो कि विल नॉट बी हेल्पफुल टू योर होल केस। तो इंश्योर के क्वेश्चंस आपके क्लियर हों एंड दे आर नॉट रेपिटेटिव। इसी तरह
ये क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए कि डिसअलाउ विटनेस एक्सप्लेनेशन। एग्जामिनेशन चीफ के अंदर विटनेस एक्सप्लेनेशन करता है क्योंकि आपने उसे ओपन एंडेड सवाल किया है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने उसको एक्सप्लेन नहीं करने देना। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर वो एक्सप्लेन करने बैठ गया ना तो वो उस चीज़ को जस्टिफाई करने लगेगा कि जी मैं यहाँ पे था, मैं वैसे था, मैं क्यों था, क्या था। उसमें चले गए तो टाइम वेस्ट हो गया आपका। आपने जो आगे सवाल करना था वो एक रब्त है, वो टूट जाएगा। ठीक है, तो उस रब्त को आपने टूटने नहीं देना है। एंड नेवर आस्क द क्वेश्चन व्हाई। दिस इज फॉर बोथ इन क्रॉस एग्जामिनेशन एंड डायरेक्ट एग्जामिनेशन। कि अच्छा आप किधर थे, क्या थे, आप क्यों थे, या आपने ऐसा क्यों किया। तो इस तरह के सवालात आपने नहीं करने, बिकॉज दैट एक्चुअली यू नो गोज टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट कि आप उससे जो है वो जस्टिफिकेशन मांग रहे हैं फॉर हिज पर्टिकुलर एक्ट। तो आपने फैक्ट्स की, जो फैक्ट्स हो चुके होते हैं उसके जरिए से जो है वो निकालना होता है ऑफ व्हाट अकर्ड, रादर देन जस्टिफिकेशन की जी। क्योंकि वाई का मतलब है कि यू आर आस्किंग फॉर देयर इंटेंट। तो अब इंटेंट ऐसी चीज है विच इज नॉट यू नो गोइंग टू कम आउट एट दैट पॉइंट, दैट इज फॉर द जज टू सी इन लाइट ऑफ द होल सिचुएशन। तो आपने वाई वाले सवालात नहीं करने। ठीक है, व्हाट, हाउ, व्हेन, इस तरह के जो है सवालात हैं विच आर रेलेवेंट। लिमिट वही के लिमिटेड क्वेश्चंस करें। ठीक है, और इसी तरह से लीव टाइम फॉर समेशन कि आप एंड पे आप खैर टाइम दिया जाता है क्लोजिंग स्टेटमेंट के अंदर, तो लेकिन यह है कि यू शुड इंश्योर कि आपने समराइज कर दिया। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ज़रा जो सवाल हुआ था, तो वो ज़रा लिमिटेड था, लेकिन इसी से मैंने कहा कि मैं आपको साथ साथ दिखा दूँ। तो वेट सेकंड। अच्छा, अब these are some parts of the 9 pigeonholes of Irving Young। ठीक है, अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, प्रायर इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट। अब ये आप इस पर्सपेक्टिव में समझें कि वो ये बातें बता रहे हैं कि आपने किन चीजों को कंसिडर करते हुए विटनेस को डिसमेंटल करना है इन क्रॉस एग्जामिनेशन। दिस इज नॉट फॉर एग्जामिनेशन इन चीफ, दिस इज फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन। इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट को आपने एस्टैब्लिश करना है। कोई इस तरह की चीजें आपने उस चीज को हाईलाइट करना है। कोई उनका बायस था, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, जो कि आपको फैक्ट से पता चलेगा, उनकी बातों से पता चलेगा। कोई अंडरलाइंग मोटिव था, वो कि उनकी बातों से पता चलेगा, वो आपने चीज एस्टैब्लिश करनी है। ठीक है, मेमोरी कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात आ गई जी कि मेमोरी अगर उनकी गड़बड़ है, या आपने उस चीज को साबित कर दिया जी कि इनकी तो मेमोरी ठीक नहीं है क्योंकि इनको चीज याद नहीं है, तो उस चीज को आपने एस्टैब्लिश कर दिया, तो वो विटनेस के ऊपर उस चीज का असर पड़ जाएगा। जज के ऊपर असर पड़ जाएगा ये जी कि विटनेस को जो है वो चीजें याद नहीं होती, या विटनेस की जो टेस्टिमनी है इट इज नॉट क्रेडिबल। ठीक है, तो विटनेस को असल में पंक्चर करने के लिए ये कुछ उसमें टेक्निक्स है। ठीक है, इसी तरह से कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, इम्पीचमेंट आ गई जी कि कोई उसका फैक्ट्स में अगर लिखा हुआ है जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो दैट यू नो बिकम्स रेलेवेंट। इसी तरह से ओपिनियन की तरफ आ गया जी कि अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है जो कि उसके ओपिनियन या बिलीफ की तरफ चली जाती है, एंड दिस विल बी फ्रॉम द फैक्ट्स, आप उससे बाहर नहीं जाएंगे। कोई आपको फैक्ट्स में चीज पता चली है जी कि विटनेस जो एक चीज के हवाले से बिलीव करता है कि इट इज करेक्ट, कोई गलत चीज है उसके बारे में बिलीव करता है इट इज करेक्ट, तो वो भी आप प्रूफ करेंगे एंड यू शुड टारगेट फॉर दैट। तो आपने इन चीजों के पर्सपेक्टिव में अपने क्वेश्चंस बनाने हैं कि इन चीजों को आप उसमें से निकालें कैरेक्टर के हवाले से। कि अच्छा, कैरेक्टर के हवाले से एक चीज बड़ी आपने इंश्योर करनी है कि व्हाट यू आर नॉट अलाउड टू आस्क इन क्रॉस एग्जामिनेशन इज स्पेशली एनी क्वेश्चन विच इज स्कैंडलस। ऐसा सवाल जो कि विटनेसेस को जो है वो स्कैंडलाइज करे या कोई उनके हवाले से नामुनासिब हो, तो दैट इज नॉट अलाउड, एंड दैट इज समथिंग विच इज यू नो वेरी डिस्करेज्ड एंड वेरी डिसलाइक्ड बाय द जजेस एज वेल। तो ऐसा कोई सवाल जो कि करेक्टर के ऊपर सवाल उठाए कि जी ये करेक्टर जो है ना वो ठीक नहीं है, कोई इस तरह की चीज, तो दैट इज नॉट करेक्ट। लेकिन रेपुटेशन के ऊपर जाके अगर वो उसमें फैक्ट्स में से कुछ आता है तो देन यू कैन यू नो लिप इनटू इट, लेकिन वेरी केयरफुल, ये बहुत बारीक सा पॉइंट है, तो इस चीज को आपने देखना है। इसी तरह फैक्ट्स और डिटेल्स के हवाले से
कोई उसमें कॉन्ट्रडिक्शन होती है इस तरह की चीज़। तो ये आपके साथ शेयर कर दूंगा, इंशाल्लाह आप लोग उसको देखिएगा यू नो तसल्ली से अपने टाइम में। लेकिन जो आपने सवाल किया था ना कि हाउ कैन वी लिंक इट, तो ये अब टेक्निक्स हैं, ये आपको लॉ स्कूल में नहीं सिखाए जाएंगे या ये आपको ड्यूरिंग द डिग्री कोई भी नहीं सिखाएगा। तो मॉक ट्रायल असल में आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप इन प्रैक्टिकल स्किल्स को सीखें भी एंड देन यू इम्प्लीमेंट देम एंड यू सी कि व्हाट इज द रिजल्ट, और वो आप जाहिर है कि आप करेंगे इम्प्लीमेंट, आप अल्फिया भी करेंगे, सारा कुछ करेंगे एंड देन यू लर्न। तो ये प्रैक्टिकल चीजें हैं तो करने से आएंगी। बूट के अपने फवायद हैं और उसके अपनी जो है ना कह सकते हैं कि फयूज़ व बरक़ात हैं, एंड इट विल इक्विप यू इन पर्टिकुलर रिगार्ड्स, और इसके अपने रिगार्ड्स हैं विच यू विल ओनली गेट थ्रू दिस। आपको और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी लॉ स्कूल में कम से कम अवेलेबल नहीं होगी जो कि इस हवाले से आपको ट्रेन करे। तो आई होप कि इट आंसर्स द क्वेश्चन इन सम रिगार्ड, इफ इट डज नॉट डू लेट मी नो। अच्छा जी, एज अ सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट, या तो इत्तेफाक है कि हम सारे स्टूडेंट्स सेकंड सेमेस्टर के हैं या ये वैसे इत्तेफाक है कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन मॉक ट्रायल्स moods, but sometimes I lack confidence due to my English. What strategies would you recommend and improving communication skills and participating confidently? Number one, you should understand that you are not alone in this. This is a problem which is faced by the majority of legal professionals in Pakistan. You might be very surprised, आपको बहुत हैरानगी होगी जान के कि ऐसे ऐसे वकला who have you know प्रैक्टिस में 30 साल की प्रैक्टिस है, 40 साल की प्रैक्टिस है, 20-25 साल की प्रैक्टिस है, and then an opportunity would come where they would need to you know say something in English, or they would need to give you know a presentation in English, and they would stumble. वो परेशान हो जाएंगे, वो टेंस हो जाएंगे, वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यू आर नॉट अलोन इन दिस, ठीक है। नंबर वन, यू हैव अ रियलाइजेशन कि मेरे एक वीकनेस है जो कि मैंने करेक्ट करनी है। नंबर वन, दैट इज स्टेप वन। ये चीज़ मैं तमाम लॉ स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि इंग्लिश एक टूल है एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, एंड इन द लीगल प्रैक्टिस इट कैन मेक और ब्रेक यू। क्यों? आप जब जाएंगे ना जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, तो उसमें आप देखेंगे कि जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो जनरली उर्दू में ही हो रहे होते हैं। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं तो इसलिए ज़रूरी है या कोई इस तरह का मामला है। आमतौर पे जो इंग्लिश में आर्ग्यूमेंट्स होते हैं वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। उर्दू में भी होते हैं मतलब, लेकिन इंग्लिश में खास तौर पे होते हैं। लेकिन इंग्लिश ज़रूरी क्यों है? आपके तमाम तर डॉक्यूमेंट्स, तकरीबन तमाम तर डॉक्यूमेंट्स दे आर इन इंग्लिश। आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, आपको जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, दे आर इन इंग्लिश। जो रिकॉर्ड्स हैं, दे आर इन इंग्लिश। अच्छा, और जो उर्दू में, वो भी उर्दू ये हमारी आम उर्दू नहीं, आम फहम उर्दू नहीं है, इट इज़ लीगल उर्दू, जो कि शायद आपको इंग्लिश से भी ज़्यादा मुश्किल लगे, क्योंकि उसमें बड़े फारसी के मिले जुले से अल्फाज होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो वो एक अलग चैलेंज है जो कि रोज़मर्रा के सूरत हाल में हम सब फेस करते हैं, बिकॉज वो चीज़ इस्तेमाल होती हैं एंड वी इट इज़ अ डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग। तो खैर इंशाल्लाह आप आएंगे तो देखेंगे। लेकिन इंग्लिश के हवाले से मैं आप लोगों को कहूँगा कि इंश्योर के बिफोर यू कम इनटू द फील्ड ड्यूरिंग योर लॉ स्कूल यू वर्क ऑन इट, ठीक है। उसमें मेहनत के साथ काम करें और इंश्योर करेंगे आपकी इंग्लिश अच्छी से अच्छी हो। एंड इट इज़ इट इज़ अ स्किल, और स्किल का मामला ये होता है कि यू आर नेवर परफेक्ट एट इट, ठीक है। एंड यू कीप ऑन इम्प्रूविंग इट, आप दिन ब दिन उसमें बेहतरी करते जाते हैं। एंड इट इज़ अ क्राफ्ट, आप जितना वो गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। वॉट यू कैन डू, रीडिंग इज़ अ गुड थिंग। अगर आपकी रीडिंग की आदत नहीं है किसी की, तो रीडिंग करें। इंग्लिश की किताबों की, किसी की रीडिंग की आदत नहीं है तो उन किताबों से शुरू करें विच आर ऑफ इंटरेस्ट टू यू। किसी को नॉवेल्स पसंद है वो नॉवेल्स पढ़ें, किसी को कोई थ्रिलर चीज़ें पसंद है, कोई हॉरर की चीज़ें पसंद है वो पढ़ लें, किसी को स्पोर्ट्स की चीज़ें पसंद है वो पढ़ लें, बट रीड। पर्सनली स्पीकिंग मुझे लगता है कि जो एक चीज़ ज़्यादा जो है ना इफेक्टिव है वो है वॉचिंग मूवीज़, एंड नॉट ऑल मूवीज़, ठीक है। ऐसी मूवीज़ के जिसमें इंग्लिश का जो इस्तेमाल है वो बड़ा अच्छा हुआ, जो ख़ास तौर पे कुछ पुरानी मूवीज़ हैं ना, दे आर ग्रेट। अच्छा, और इसमें एक बड़ी आप लोगों के लिए मैं ख़ास और रिकमेंडेशन करूँगा, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड और आप उस मोड में आना चाहते हैं ना,
तो आपने अब एक सेशन आज अटेंड किया है। हॉलीवुड में और बॉलीवुड में भी अब तो बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है रिगार्डिंग लीगल मूवीज, लीगल कंटेंट है, आप उसको जाके देखें तो बिलीव मी यू विल बी एबल टू कनेक्ट कि अच्छा ये जो ये सवाल करे ना, ये असल में उस टेक्निक के तहत कह रहे हैं, ये करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये जो सवाल कर रहे हैं ना, ये जो जवाब दे रहे हैं वो इस पर्सपेक्टिव के तहत है। तो मूवीज आर अ गुड सोर्स उस, और वो आप ऐसा ना देखेंगे जी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। मूवीज आप देखें फॉर द सेक ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, सबटाइटल्स ऑन करके देखें सो दैट आपको हर लफ्ज पता हो जो कि कहा गया है। डिसरिगार्ड, क्योंकि ज़ाहिर है हर तरह की जो चीज़ होती है, डिसरिगार्ड द नेगेटिव थिंग्स एंड ओनली फोकस ऑन द पॉजिटिव्स, कि आपको उन अल्फाज के मतलब पता हो ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें एंड देन इनकॉर्पोरेट कर सकें। उससे होता क्या है कि जब आप सुनते हैं ना, क्योंकि आपके सीखने की दो है, या तो आप सुन रहे हैं या आप देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, वो भी ऑब्वियसली देखने के, सुनना और देखना ये प्राइमरीली दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो जब आप सुनते हैं और आप देखते हैं और फिर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो वो चीज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके जो है ना वो अल्फाज इस्तेमाल में आना शुरू कर देते हैं। और फिर एट द एंड ऑफ द डे पार्टिसिपेट इन दीज एक्टिविटीज, मॉक ट्रायल में पार्टिसिपेट करें, मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें। आपको अगर ये डर है कि जी मेरी इंग्लिश कमज़ोर है और मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा या नहीं करूँगी क्योंकि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो हाउ विल यू बी एबल टू इम्प्रूव दैट? आपको अगर मौका ही नहीं मिलेगा उसको बोलने का तो यू विल नॉट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव दैट, ठीक है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, हम लोग क्योंकि इस्लामिक यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं और हमारी डिग्रीज में अरबिक भी होती है, तो जब तक हम अरबिक अपने रोजमर्रा में पढ़े, और कोई अरबिक हमारी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, इट इज वर्किंग प्रोफिशिएंसी जिसको कहते हैं, कि वी कैन अंडरस्टैंड इट रीजनेबली, वी कैन राइट इन इट और रीड इन इट रीजनेबली गुड। लेकिन जब तक हम उस चीज को पढ़ रहे थे या जब तक उसमें हम सवालात के जवाब दे रहे थे या जब तक हम उसको गो थ्रू कर रहे थे, इवन दो वी वर नॉट दैट गुड, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग उसको अच्छी थी, हमारा उसका यूज अच्छा था। जैसे हम उससे कट ऑफ हुए और हमने उसका यूज बिल्कुल ही खत्म कर दिया, तो वी आर मच इन अ मच बेटर सिचुएशन, ठीक है। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज है, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन है, मॉक ट्रायल कॉम्पिटिशन है, पार्टिसिपेट इन देम, ज्यादा से ज्यादा करें, बिकॉज दे विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। आप रोजमर्रा में, क्योंकि अपने घर वालों से तो आप पूरी टाइम पे इंग्लिश नहीं बोल सकते, ठीक है, आप अपने स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी पूरी टाइम किसी से इंग्लिश नहीं बोल सकते। इन कॉम्पिटिशन्स का फायदा ये होता है कि आप जितना बोलते हैं, जितना पढ़ते हैं, तो उससे आपका क्राफ्ट इम्प्रूव हो जाता है। जो टूल है उसका उतना उसमें इम्प्रूवमेंट उतनी आती है जितना उसका इस्तेमाल होता है। तो यूज इट एज मच एज यू कैन एंड यू विल सी इम्प्रूवमेंट विद ड्यू टाइम। उसके साथ साथ आप कोई कोर्सेज करना चाहें, एआई के टूल्स हैं, यूज देम, ठीक है ना। आप चैट जीपीटी से बैठ के डिस्कशन करें, आप जेमिनी से बैठ के डिस्कशन करें जी कि आई वांट टू इम्प्रूव माय इंग्लिश, तो रोज आप 5 मिनट की क्लास भी लें, 10 मिनट की भी लें, जस्ट टू गेट दैट कॉन्वर्सेशन गोइंग, ठीक है। देयर आर मल्टीपल एप्स फॉर दैट। डू एफर्ट। जब आप एफर्ट करते हैं ना तो आप उस चीज को सीरियस लेते हैं, जब आप सीरियस लेते हैं तो देन डेफिनेटली ऐसा हो ही नहीं सकता कि यू आर नॉट एबल टू ओवरकम दैट। तो ओनली कंसिडर इट एज अ टूल, और आप इस चीज को ध्यान में रखें कि ये एक तरह से तलवार है और मैंने इस तलवार को चलाने में महारत हासिल करनी है। तो इट इज सिंपली दैट, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। ज्यादा अच्छी चलानी आएगी तो आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे, यू विल बी एबल टू सक्सीड मोर। कम अच्छी तलवार चलानी आएगी तो यू आर बिट मोर अनसेफ इन दैट पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो एज अ टूल उसको कंसिडर करें एंड यूज इट एज मच एज यू कैन। तो आई होप दैट क्लियर्स इट अप। In both cases, sides have both of the sides have proven the statement they quoted to prove. Then at the end of the day, जज का काम है कि वो उस चीज को जो है ना क्या कहते हैं, जज ने डिसीजन देना है। अगर तो दोनों साइड्स ने इतना अच्छा काम किया है कि प्रोसिक्यूशन ने भी अपने जो पॉइंट्स एस्टैब्लिश करने थे उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिए हैं, और डिफेंस ने जो पॉइंट्स अपने डिसप्रूव करने थे उन्होंने डिसप्रूव कर दिए, इसका मतलब है कि बोथ टीम्स आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। तो मॉक ट्रायल के हद तक ये फायदा होगा कि वो दोनों टीम्स को बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है, और जजेस बहुत इंप्रेस होंगे, ठीक है। लेकिन इन रियल लाइफ एट द एंड ऑफ द डे
ट्रायल के एंड पे डिसीजन आना होता है और वो जज डिसाइड करेगा कि हु हैज प्रूव्ड और हु हैज डिसप्रूव्ड, किसने कितना अच्छा प्रूफ किया है, किसने कितना अच्छा डिसप्रूव किया है। तो ऐसा आमतौर पे होता नहीं है कि दोनों पार्टीज जो है ना वो बिल्कुल क्लैश और पूरी तरह से जो है ना वो अच्छा मुकाबला कर सकें। हमेशा किसी की तैयारी किसी से बेहतर होती है, लेकिन यस, मॉक ट्रायल की हद तक ये है कि you both teams will get very good marks. Actually, so what should we do if the witness starts explaining and justifying the stance in cross-examination? अगर विटनेस अपने सवाल के जवाब में एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दे, इसका मतलब है कि आपका सवाल गलत था. You should not have articulated the question in that manner. आपको सवाल आर्टिकुलेट इस अंदाज में करना चाहिए था कि उसका जवाब हाँ या ना के अलावा हुई कुछ ना, उसको एक्सप्लेनेशन में जाने का मौका ही ना मिले. क्या आप 10 अप्रैल को राजा बाजार पिंडी में थे? इसका हाँ या ना के अलावा क्या जवाब हो सकता है? या तो थे या नहीं थे. हाँ, अगर पूछे आप 10 अप्रैल को कहाँ थे? 10 अप्रैल को मैं रावलपिंडी में था, रावलपिंडी में राजा बाजार में था, मैं वहां पे जो है वो खरीदारी करने गया था, फलाना ढमकाना. तो अगर एक्सप्लेनेशन करना शुरू कर दिया है तो सुने कितनी एक्सप्लेनेशन कर लेगा. और जैसे कंप्लीट करता है, इंश्योर कि आपका नेक्स्ट सवाल इट इज टू द पॉइंट, उसके बाद उसका मौका ना मिले. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपका फॉर एग्जांपल आपने विटनेस से सवाल कर लिया, विटनेस अब जवाब देना शुरू कर दिया, वो तवील है, तो ऐसा नहीं कि आप विटनेस को बीच में रोकेंगे कि भाई खामोश हो जाए, अच्छा मैंने अगला सवाल करना है, बिकॉज दैट आल्सो सेंड्स द नेगेटिव इंपैक्ट. तो लिसन टू द आंसर एंड इंश्योर कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैविंग दैट कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर, कि उसका जवाब बहुत ही कंसाइज हो. ठीक है. I'm sorry to interrupt, sir. The meeting is ending in 7 minutes due to the limit by the Google Meet. So I request you to please wind up. No worries, बस हम इसको मुकम्मल करें. Okay, being students of second semester, we are advised to what's rather not trials or what system. This is not something which should. मैं तो आपसे जिस तरह बता रहा हूँ कि I believe mock trials should take priority. आप दोनों करें, ठीक है. आपके मतलब सबके 5 साल होते हैं, जिनके 3 साल भी होते हैं, तो उनको भी परेशानी वाली बात नहीं है. दोनों करें, दोनों की अपनी जगह अहमियत मौजूद. लेकिन मैंने आपको बताया कि मॉक ट्रायल्स वो चीज़ें हैं जो कि आपको ज़्यादा रेलेवेंट हैं, ज़्यादा अच्छी साबित होंगी, वो आपको ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी व्हेन यू गो इनटू द फील्ड. मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट करने का भी फ़ायदा है, कतई तौर पे उससे इनकार नहीं करूंगा, और उसका बहुत फ़ायदा है. यू गेट रिसर्च स्किल्स, यू गेट ड्राफ्टिंग स्किल्स, और ये बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं. इस चीज़ों को समझे कि बगैर इन चीज़ों के अंदर एक्सपीरियंस के बगैर यू शुड नॉट गेट आउट ऑफ द लॉ स्कूल. ठीक है, ये इतनी अहम चीज़ें हैं. लेकिन एज अ सेट दोनों की अपनी अपनी जगह अहमियत है. मॉक ट्रायल भी करें, मूट कोर्ट भी करें, जो पहले आए वो करें. जब मॉक ट्रायल आता है तो मॉक ट्रायल करें, मूट कोर्ट आएगा तो मूट कोर्ट करें. ये कौन सी बात है जी कि मॉक ट्रायल अभी ना करें, मॉक ट्रायल बाद में करें? बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग. मैं बता रहा हूँ कि मूट कोर्ट का और मॉक ट्रायल का फायदा क्या है. मॉक ट्रायल भी वो चीजें आपको सिखा रहा है जो कि आपको लॉ स्कूल नहीं सिखाता. मूट कोर्ट का भी फायदा ये होता है कि आपको वो चीजें सीखने को मिल जाती हैं जो कि शायद अभी आपने पढ़ी नहीं है, लेकिन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न देम. मैंने अपना जो पहला मूट किया था इन द 5th सेमेस्टर, उस वक्त हमारी डिग्री मतलब हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो हम लेटर ऑन पढ़ते हैं, तो वी डिड अ मूट, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे बेस्ड था सारा का सारा. अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू विन दैट. तो मतलब दैट डजंट मीन, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी टीम्स बुरी थी, माशाल्लाह बाकी टीम्स बहुत अच्छी थी, लेकिन ऑब्वियसली हमने तैयारी की थी. तो एट द एंड ऑफ द डे कामयाब वो होता है जिसकी तैयारी अच्छी होती है. इट डजंट मैटर कि आपने अपनी डिग्री में क्या पढ़ा है कि क्या नहीं पढ़ा. तो ये आपको उस चीज़ से आज़ादी देती है. तो डोंट लिमिट योरसेल्फ. जो चीज़ जब आती है टेक इट अप. यस, लीगल मूवी से बहुत अच्छी शायद ने रिकमेंडेशन की है, 12 एंग्री मैन. इट इज एन अमेजिंग अमेजिंग मूवी, डेफिनेटली वॉच दैट. ठीक है. न्यूरमबर्ग रिसेंटली. डेविल्स एडवोकेट मैं जाती तो आई डोंट थिंक कि उसमें आपको लॉ के बारे में ज़्यादा सीखने को मिलेगा. इट इज इन सम पर्सपेक्टिव, लेकिन यह है कि देयर आर वंडरफुल मूवीज. ठीक है. इसमें कुछ मैथ्यू मैककॉनॉही की मूवीज हैं, कुछ सीरीज हैं हॉलीवुड की. ठीक है. रायन गॉसलिंग की एक मूवी है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो सूट
की सीरीज भी मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करता बिकॉज इट इज लेस रिलेटेड टू लॉ एंड मोर रिलेटेड टू द ऑफिस पॉलिटिक्स, ठीक है. एंड उससे नुकसान एक ही होता है जो कि मैंने देखा है कि लोग सूट की सीरीज देखते हैं और उसके बाद फिर they expect things from the legal fraternity or the legal setting of Pakistan which is not there, so it is not required, ठीक है. पर आई एम श्योर आप लोग ने देखी भी हैं, there is so much content out there for legal processes, so watch it. बॉलीवुड में भी है, हॉलीवुड में भी है. see good content and facture. yes, ये चीजें हैं जो कि आपको उस थॉट प्रोसेस में लेके आती है which make you understand, which give you that perspective, ठीक है. तो ये है कि इंशाल्लाह इनका फायदा होगा. सीखने की हद जरा पर्पस से सीखें एंड अल्लाह खैर वाला मामला करेगा. Is there any other question? कोई बीच में हैंड रेस कर रहा था. I'm really sorry, I was not able to take the question. Okay, चले. I really hope so कि आप लोग को जो है वो कुछ समझ आई होगी. I have been able to communicate the topic in a manner कि जो कि आपके लिए understandable था and it is beneficial for you, which is the most important thing. And मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह I will be seeing all of you in different mock trial competitions nationally and internationally as well. But thank you so much to Adil for the kind invitation, and it has been a great honor. Thank you so much, sir, for such an insightful session. We truly appreciate your time and valuable guidance. Thank you all participants for joining us. We look forward to seeing you in the next session tomorrow, inshallah. Allah Hafiz. Thank you so much, sir. Thanks so much, guys. Allah Hafiz. Kindly everyone, thank you so much. आप leave कर सकते हैं meeting.